Hello viewers. Hello viewers. I am Dr. Sarika Gupta, Senior Consultant Gynecologic Oncology and Robotic Gynecology at Infras Apollo Hospital, New Delhi. So I do surgeries for women cancer, and we also have with us Dr. Chandrani, and she'll introduce herself. Hello, I'm Dr. Chandrani. I'm a medical oncologist and I practice in HCG Eco Cancer Center in Kolkata. And I usually after all solid malignancies. So we'll be talking about women cancer today, more about prevention and treatment, and we'll be also taking questions. I think first let's start with what are the main cancers? What are the top cancers for women? And so the main cancer for women is first is the breast cancer, which is the most commonest cancer in women. Second is the cervical cancer. Third is ovarian cancer. And then fourth is oral cavity cancer, GI cancer, colon cancer, and lung cancer. Let's talk about the incidence of endometrial and ovarian cancer. Dr. Chandrani, please, can you throw light on the incidence of what is the prevalence of endometrial cancer and ovary cancer? So, first of all, we'll speak about ovarian cancer. So, ovarian cancer is quite common in India, obviously, more in the elderly age groups compared to young age groups. And from the data from the last year, we can see there has been about 60,000 new cases which have been diagnosed in India, all over India, in the last year, in 2000. So, that's quite a huge amount of cancers that have been detected. Compared to that, endometrial cancer is a cancer which is more found in the Western countries, and its incidence is fairly less, about 4 plus per 1 lakh population in Delhi, and maybe slightly more in Mumbai, like in Maharashtra. So that is a little bit less in India till now. Yeah, and ovarian cancer, one thing is that ovarian cancer is a kind of a more dangerous cancer as compared to Yeah. other three cancers. And let Yes. me tell you about breast cancer, that the incidence of breast cancer is more than 1.5 lakh. So more than 1.5 lakh women were diagnosed with breast cancer last year. And about 50% actually succumb to this kind of malignancy because it is detected late. And cervix cancer is very common, and it 1.2 lakh women were diagnosed with cervical cancer in the previous years. And the important thing is that even though these are the most common cancer, but these have a screening test and they can be prevented. In this talk, we will be talking about what are the warning signs and symptoms of all these women cancer and how can we prevent and do screening. So let's talk about screening. Dr. Chandrani, Yeah. everybody wants to know about what is a screening test. So, screening test means like a test with which we can detect the cancer early, so that obviously there is better cure and the survival also improves. Now, in India, we have such a huge population that bringing a screening program by the government for, say, a cervical or a breast cancer is very difficult. So, what we now do is that more and more of awareness programs and local authorities can take care of doing different tests to detect these cancers early. That's how we can kind of bring about the awareness, try to test and detect cancer much early. So that's the way we should go for it in this country. Yeah, so I think that is true. तो हम ये कहना चाहेंगे कि स्क्रीनिंग टेस्ट वो टेस्ट है कि जो सभी लोगों को करना चाहिए एक एज के बाद, और उसके अंदर ऐसा नहीं कि आपको सिम्टम हो तभी आपको स्क्रीनिंग टेस्ट करना चाहिए। ये सभी लेडीज को एक उम्र के बाद जैसे कि गाइडलाइंस में है उस तरीके से करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं। तो डॉक्टर चंद्रानी, अगर आप बता सकें कि ब्रेस्ट कैंसर के कॉमन वार्निंग सिम्टम्स क्या हैं जिसको देखकर पेशेंट्स को जाना चाहिए डॉक्टर के पास। सो ब्रेस्ट कैंसर में क्या देखते हैं कि ब्रेस्ट में अगर कोई लंप हो, जो लंप में कोई पेन ना हो, या लंप के साथ कोई डिस्चार्ज हो, कोई ब्लीडिंग हो, तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना हो। इसके साथ अगर आर्म पिट में, एक्जिला में, वहाँ पे भी कोई लंप हो, वो भी एक इम्पॉर्टेंट साइन है ब्रेस्ट कैंसर का।
और ब्रेस्ट कैंसर जनरली क्या होता है, इनिशियली हम लोग ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करके मीन्स एग्जामिनेशन करके ब्रेस्ट का लम्प डिटेक्ट करना इजियर होता है। अगर कभी कभी ब्रेस्ट कैंसर स्प्रेड हो जाता है तो फिर बोन्स में दर्द होना या किसी और सिम्टम, वेट लॉस, एनीमिया, ये सब भी ब्रेस्ट कैंसर प्रेजेंट करते हैं। लेकिन क्योंकि ये ब्रेस्ट लम्प थोड़ा पैल्पेबल है, देख सकते हैं, तो इट्स इजियर टू आइडेंटिफाई और डिटेक्ट अर्ली सो दैट हम जल्दी डॉक्टर के पास जाए। तो लम्प, हाँ पेन या डिस्चार्ज या ब्लीडिंग, ये देखना होता है। हाँ, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है सभी महिलाओं को जानना कि सिम्टम क्या है, जैसे डॉक्टर चंद्रानी ने बताया। और उसके बाद जब आप इन सिम्टम्स के साथ अगर डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर कैसे डायग्नोज करते हैं इस बीमारी को, इसके बारे में जान लेते हैं। जब अगर कोई भी महिला हमारे पास ब्रेस्ट के लंप के साथ आती है तो हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं उसका, और ये देखते हैं कि कहाँ पर लंप कैसे महसूस हो रहा है, और अगर सामने ही दिख रहा है तो उसी समय उसकी बायोप्सी ली जाती है। अदरवाइज ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड के लिए सलाह दी जाती है और मैमोग्राफी के लिए सलाह दी जाती है। आमतौर पे जिन लेडीज का एज जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होती हैं, मतलब जिस टाइम पे उनकी माहवारी आ रही होती है वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, तो उस समय ज्यादातर अल्ट्रासाउंड तो बताया ही जाता है, उसके साथ मैमोग्राफी बताई जाती है। और एक एज के बाद मैमोग्राफी आपकी सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए ज्यादातर बताई जाती है, या फिर कोई सस्पिशियस छोटा सा लंप हो उसके लिए मैमोग्राफी बताई जाती है, और उसके बाद उसकी बायोप्सी की जाती है। तो डॉक्टर चंद्रानी, ये बायोप्सी करने के बारे में कई भ्रांतियां हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? पहले पेशेंट जब आते हैं तो वो लोग समझते हैं कि बायोप्सी से कैंसर स्प्रेड हो जाता है। ये ठीक नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि बायोप्सी में हम लोग वो लंप निकाल के कुछ टेस्ट करते हैं। पहले तो ये जानना जरूरत है कि इसमें कैंसर है कि नहीं। उसके बाद ये जानना है कि ब्रेस्ट कैंसर में ये ब्रेस्ट इज हार्मोन मीडिएटेड, उसमें हार्मोन का इफेक्ट होता है। तो हम लोग आजकल वो बहुत साल पहले रिसेप्टर स्टेटस जानते हैं कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एक रिसेप्टर HER2/neu, ये सब रिसेप्टर के लिए एक एक ट्रीटमेंट होता है। तो अगर ये नहीं जाने तो बायोप्सी नहीं करे तो वो ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट स्पेसिफिक नहीं होता है। तो इसीलिए बायोप्सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बायोप्सी से कैंसर है उसके क्या टाइप का है, उनका हार्मोन स्टेटस, ये जानना जरूरत है। और बायोप्सी से कैंसर स्प्रेड नहीं होता, ये जो एक अफवाह है, ये वी शुड अंडरस्टैंड कि ये ठीक नहीं है ये कॉन्सेप्ट। सो बायोप्सी इज इम्पॉर्टेंट बिफोर वी गो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। So, Dr. Indu is also with us, so I would like to request her to हेलो। introduce herself. Hello, Dr. Indu. Hello, good evening, everyone, and a very, very warm welcome to this Facebook Live, which is being conducted here. And you have heard the excellent surgeon, Dr. Sarika, and Dr. Chandrani, who is a medical oncologist. I'm Dr. Indu Bansal. I'm basically a radiation oncologist, and I'm director and head of radiation oncology department at Narayana Super Speciality Hospital, Gurugram. So I have around more than 22 years of experience in the field, and at Narayana Health, we have all the best advanced radiation technologies available, stereotaxy and everything. So I think with this brief introduction, let's move on to the beautiful session, which is already being conducted. डॉक्टर चंद्रानी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि बायोप्सी इज अ मस्ट, और यहाँ पे हम सब लोगों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि बायोप्सी करना बहुत जरूरी है। उसके बिना आप किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट चालू नहीं कर सकते, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे वो सर्वाइकल कैंसर हो, चाहे वो ओवेरियन कैंसर हो। हर कैंसर के लिए बायोप्सी करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर सारिका, डू यू थिंक बायोप्सी हेल्प्स यू इन एनी वे? अगर आप किसी ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हो तो हाउ डज बायोप्सी हेल्प यू? बायोप्सी करने से हमें पता चलता है कि एक तो किस टाइप का कैंसर है, दूसरा हमें इसके अंदर रिसेप्टर्स के बारे में हम जानते हैं कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर और HER2/neu रिसेप्टर। जब इन रिसेप्टर के बारे में जानते हैं तो उसकी कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट, एक तो सर्जरी, आप कितनी बड़ी सर्जरी करना चाहते हैं, और उसके बाद में आप एडजुवेंट थेरेपी के लिए क्या रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी, या फिर उसके बाद में जो एक्सटेंडेड एडजुवेंट थेरेपी में हार्मोन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी की क्या जरूरत पड़ेगी, उसके लिए जरूरी है। तो ट्रीटमेंट तो खैर बिल्कुल, सर्जरी भी नहीं हो सकती जब तक हम बायोप्सी से कंफर्म ना करें कि ये कैंसर है या नहीं। डॉक्टर चंद्रानी, जैसे अभी हम बायोप्सी की बात कर रहे थे, तो कुछ हमने सुना है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं, जैसे हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव, ट्रिपल नेगेटिव।
तो अगर हम बायोप्सी ना करें तो क्या हम इनके ट्रीटमेंट्स, आपको लगता है कि इनकम्प्लीट होंगे या हम पूरी तरह ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे? मतलब एक हाँ, हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव ट्यूमर का ट्रीटमेंट और एक HER2 न्यू पॉजिटिव ट्यूमर का ट्रीटमेंट, क्या ट्रिपल नेगेटिव ट्यूमर से कुछ डिफरेंट होता है? आप डिफरेंट प्लीज। तो होता है। हाँ हाँ, जब जब हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव होता है तो हम हार्मोन टैबलेट या जो देते हैं वो 5-10 ईयर्स से देते हैं, तो उससे ज्यादा बहुत सारा बेनिफिट है कीमोथेरेपी के बाद। जब हार्ट टू पॉजिटिव होता है वो उसमें स्पेसिफिक टारगेटेड ट्रीटमेंट है जो कीमो के साथ चलता है, उसके बाद 17 साइकिल, टोटल 17 साइकिल्स चलता है, उससे बहुत अच्छा सर्वाइवल बेनिफिट है। और ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर जो अभी फीमेल्स में है, यंग एज में होता है, वो मोर एग्रेसिव है, मोर हाई रिस्क है, तो उसके लिए ज्यादा कीमोथेरेपी का चॉइस और उसके बाद जो फॉलोअप है वो बहुत स्ट्रिंजेंटली करना पड़ता है। तो ये रिसेप्टर जानना बहुत जरूरत होता है बायोप्सी से, नहीं तो हम ट्रीटमेंट कुछ टेलर्ड, लाइक वी कांट टेलर द ट्रीटमेंट टू अ पेशेंट, ठीक से ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। हाँ, तो जैसे डॉक्टर चंद्रानी, आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि ट्रिपल नेगेटिव का मतलब है जिसका ऐसा ट्यूमर जो ER भी नेगेटिव हो, PR भी नेगेटिव हो और HER2 न्यू भी नेगेटिव हो, मतलब तीनों रिसेप्टर स्टेटस अगर नेगेटिव होते हैं तो उसको हम ट्रिपल नेगेटिव बोलते हैं। तो हाँ, इन पेशेंट्स में क्या आपके हिसाब से ब्रेका टेस्टिंग, BRCA1, BRCA2, ये वाली टेस्टिंग इंडिकेटेड होती है? और क्या इसके करने से हम फर्दर जो फैमिली है, मतलब जो पेशेंट है, उसके सिस्टर्स, उसके बच्चे या उनके फैमिली में और किसी टाइप के कैंसर्स के रिस्क के बारे में जानकारी ले सकते हैं? मतलब जैसे ब्रेका पॉजिटिव अगर पेशेंट होता है तो उस फैमिली में प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस भी थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। सो क्या ट्रिपल नेगेटिव पेशेंट्स में या बहुत यंग पेशेंट्स में हमें ब्रेका टेस्टिंग कराना चाहिए? फैमिली हिस्ट्री की कोई सिग्निफिकेंस है कि अगर किसी की फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हों जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो या किसी को बहुत यंग एज में ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो, सो डज ब्रेका टेस्टिंग हेल्प अस इन एनी वे? हाँ, सो ब्रैकेट टेस्टिंग इज बेसिकली ये एक जेनेटिक म्यूटेशन है जो फैमिली में रन करता है। तो जब ट्रिपल नेगेटिव होता है या जो भी हो ब्रेस्ट कैंसर में, इफ देयर इज अ फैमिली हिस्ट्री अमंग से योर मदर और योर आंटी और एनीबडी इन योर फैमिली, ब्रैकेट टेस्टिंग करने का जरूरत होता है। ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक आप ब्लड टेस्ट से कर सकते हो जिसको जर्मलाइन बोलते हो, या जब बायोप्सी होता है तो बायोप्सी स्पेसिमेन से कर सकते हो। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ब्रैका टेस्टिंग अगर पॉजिटिव हो तो ब्रैका होने से ट्रिपल नेगेटिव स्पेशली जो हाई रिस्क है सबसे, उसमें ट्रीटमेंट भी हम अच्छी तरह करते हैं, स्क्रीनिंग और वो फॉलोअप भी अच्छी तरह और विथ मोर स्ट्रिंजेंटली करते हैं। और दूसरा चीज है, ये ब्रैका टेस्टिंग सिर्फ पेशेंट के लिए नहीं, इट शुड बी डन फॉर एवरीबडी डाउन द लाइन। मीन्स पेशेंट को ब्रैका पॉजिटिव हो तो उनके डॉक्टर को सबको करना पड़ता है या सन को भी करना पड़ता है। जैसे आपने बताया कि सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर नहीं, इससे प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क भी बढ़ सकता है। और अभी यह ब्रैका टेस्टिंग करने से इसका स्पेसिफिक ड्रग भी, मेडिकेशन भी आ गया है कि जो हम बाद में अगर जरूरत हो तो यूज कर सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू ब्रैका टेस्टिंग So, ऑलवेज। हम इसके थ्रू जो लिसनर्स हैं हमारे, उनको ये बात समझाना चाहेंगे कि बायोप्सी आपको सिर्फ कैंसर डायग्नोसिस में हेल्प नहीं करता, ये आपका फर्दर ट्रीटमेंट भी डिसाइड करने में हेल्प करता है और आपका फैमिली रिस्क भी हम उससे एसेस कर सकते हैं। तो इसलिए बायोप्सी से कभी भी ट्यूमर फैलता नहीं है। बायोप्सी से प्लीज़ डरिए मत और अपना ट्रीटमेंट कराइए। और कभी कभी जो पेशेंट्स हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव होते हैं, उनका जब ट्यूमर स्प्रेड करता है तो वो हार्मोन रिसेप्टर नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो आपका ट्रीटमेंट के दौरान भी कभी कभी हमें वापस बायोप्सी करके उसके ऊपर रिसेप्टर स्टेटस का एनालिसिस करना पड़ता है। वेरी गुड। सो मैं डॉक्टर सारिका आपसे ये समझना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग हैं वो ये समझते हैं और ये सोच के चलती हैं महिलाएं, शहरों में ही नहीं गांव में भी, गांव में ज़्यादातर, कि अगर हम पूरा का पूरा ब्रेस्ट रिमूव करा लेंगे तो हमारा कैंसर का रिस्क कम हो जाएगा। और इस वजह से बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हमारे पास आती हैं जिनका बहुत छोटा सा ट्यूमर होता है, 1 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का, और उसके बावजूद वो कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूवल कराती हैं। और इंडिया में उतना ज़्यादा प्लास्टिक रिकन्स्ट्रक्शन नहीं होता है। सो आई पर्सनली फील कि इफ़ यू हैव लॉस्ट अ ब्रेस्ट, इट्स अ डेली रिमाइंडर। सो
और आजकल हम लोग देख रहे हैं, डॉक्टर चंद्रानी विल ऑल्सो एग्री कि एडवांस्ड लोकली एडवांस्ड ट्यूमर्स में भी हम कीमोथेरेपी देके उसको श्रिंक करके और हम ब्रेस्ट कंजर्व कर सकते हैं। तो डॉक्टर सारिका, आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कई लेडीज आती हैं जिनके अंदर भय इतना ज्यादा होता है, वो कहती है कि इसको पूरा निकाल दो। चाहे डॉक्टर कई बार उनको समझाने की भी कोशिश करते हैं कि हम सिर्फ ट्यूमर निकालेंगे, तो वो कहती है कि नहीं, इसको पूरा निकाल दो क्योंकि इसके अंदर ट्यूमर है और दोबारा रिकरेंस हो सकता है। जबकि साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो छोटे ट्यूमर जो एक जगह लिमिटेड ट्यूमर है और जिन उनके अंदर हम सिर्फ पार्शियल मेस्टेक्टमी कर सकते हैं, सिर्फ लंपेक्टमी, मतलब सिर्फ और सिर्फ ट्यूमर निकाल सकते हैं। उसके साथ सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी कर सकते हैं और उसके बाद रेडिएशन करके उसका जो सर्वाइवल है वो उसके बराबर होता है, जो कि हम पूरा ब्रेस्ट निकाल के, मतलब एक तरीके से हम पूरा ब्रेस्ट निकालते हैं तो एक तरह का ओवर ट्रीटमेंट, ओवर सर्जरी होती है वो। और इससे साइकोलॉजिकल, आप सही कह रही है कि अगर रिकंस्ट्रक्शन ना हो तो महिला को रोज देख कर उसको लगेगा कि मैं कैंसर से पीड़ित हूँ, जो कि वो नहीं होती, जिसमें कि अर्ली ब्रेस्ट कैंसर होता है और उसकी सर्वाइवल बहुत अच्छी होती है। तो जिनका सर्वाइवल बहुत अच्छा है उनको मेस्टेक्टमी करवाने की जरूरत नहीं है। और ये डॉक्टर आपके बताएंगे कि आप कैंडिडेट हैं कि नहीं। कई बार अगर हेरिडिटरी कैंसर होता है तो उसमें हम पूरा ब्रेस्ट निकालने की ही सलाह देते हैं, चाहे छोटा कैंसर भी क्यों ना हो। तो ये डॉक्टर आपको सही सलाह देंगे कि आप कैंडिडेट हैं ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी की और सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी की। सेंट्रल लिम्फ नोड यही होता है कि जो बगल की जो लिम्फ नोड हम निकालते हैं, वो अगर हम सेंट्रल लिम्फ नोड ना करें तो सारी निकालने से हाथों में सूजन आ जाती है। और जो सेंट्रल लिम्फ नोड अगर निकालते हैं तो एक या दो निकाली जाती है शुरुआत की, तो उससे सूजन काफी कम आती है। तो ये भी एक तरह की चीज है कि अगर आप बड़ी सर्जरी ना जाके आजकल जो मिनिमल इन्वेजिव छोटी सर्जरी करते हैं, जिसकी सेंसिटिविटी उतनी ही है, वो भी कैंसर को उतना ही पकड़ पाता है, उतना ही निकाल पाता है। तो हम कंजर्व कर सकते हैं और आगे आने वाली परेशानियां जो है उनसे भी हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो डॉक्टर सारिका ने बहुत अच्छे से बताया कि आप अगर आपको कोई ब्रेस्ट कैंसर का लंप है तो बेसिकली हमको ब्रेस्ट को तो की तो सर्जरी करनी ही पड़ती है, और साथ में हम बगल में जरूर देखते हैं क्योंकि ब्रेस्ट से बीमारी सबसे पहले बगल में जाती है। तो इसलिए एक्जिला की सर्जरी करनी पड़ती है। तो उसमें सेंटिनल नोट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि बगल में ट्यूमर गया है कि नहीं गया है। अगर नहीं गया है तो आपको कंप्लीट रिमूवल कराने की ज़रूरत, कंप्लीट एक्जिला की सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है वो ये है कि अगर आप ब्रेस्ट कंजर्वेशन करा रहे हैं, मतलब आप पूरा ब्रेस्ट रिमूव नहीं करा रहे हैं, उसके बाद रेडिएशन कराना मस्ट है। सो ये बात मत समझें कि आपने सिर्फ पार्शियल ब्रेस्ट रिमूवल करा लिया तो अब आपको रेडिएशन की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम रेडिएशन पार्शियल कंजर्वेशन सिर्फ उन पेशेंट्स को ऑफर करते हैं जो रेडिएशन के लिए विलिंग होते हैं। और रेडिएशन एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, ओपीडी प्रोसीजर है। आजकल हम लोग 30 डेज के बजाय 15 डेज का भी रेडिएशन करते हैं। और बहुत एडवांस्ड हमारे पास टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम नॉर्मल एरियाज को, जैसे हार्ट को, लंग को, फूड पाइप को, ऑपोजिट ब्रेस्ट को, उन सबको रेडिएशन के साइड इफेक्ट से बचा सकते हैं। इसलिए सिर्फ इसलिए कंप्लीट रिमूवल मत कराइए कि रेडिएशन कराना पड़ेगा। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारी महिलाएं जिनका कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूवल होता है उनको भी बाद में रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है। सो अगर आप ये सोचती हैं कि कंप्लीट रिमूवल कराने से आपको छुटकारा मिल जाएगा रेडिएशन से या आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सो वो आपकी जो फाइनल बायोप्सी रिपोर्ट आती है उससे ये क्लैरिटी मिलती है कि आपको आगे रेडिएशन की ज़रूरत कितनी है, आपको कीमोथेरेपी की ज़रूरत है कि नहीं है। सो आप कंजर्वेशन के कैंडिडेट हैं कि नहीं वो आपके सर्जन, आपके डॉक्टर्स मिलके ट्यूमर बोर्ड की मीटिंग में डिसाइड करके आपको बताएंगे कि वेदर यू आर अ सेफ कैंडिडेट फॉर कंजर्वेशन और नॉट। और अगर आपका अपफ्रंट ट्यूमर बड़ा है तो भी उसको कीमोथेरेपी से छोटा करके ब्रेस्ट कंजर्वेशन किया जा सकता है। सो डॉक्टर चंद्रानी, आप प्लीज़ ये बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि हमारे जो साइंस में, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो रही है, नॉट जस्ट इन डायग्नोस्टिक्स, हम अब जल्दी मैमोग्राफी से बहुत जल्दी ट्यूमर्स को पकड़ पाते हैं, हमारा डायग्नोस्टिक्स सीटी स्कैन, पेट स्कैन, इन सब की वजह से भी हमें ट्यूमर की स्टेजिंग बहुत अच्छे से पता चलती है। और स्टेज 4 ट्यूमर्स में भी हमारे पास टारगेटेड ड्रग्स हैं और अच्छे मॉलिक्यूल्स हैं जिससे पेशेंट्स की लाइफ बढ़ जाती है। तो आपको लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स का सर्वाइवल कुछ इम्प्रूव हुआ है
कि अगर किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बल्कि आगे बढ़ के खुशी से अपना ट्रीटमेंट करे। आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को? सो सर्वाइवल ब्रेस्ट कैंसर का डेफिनेटली इम्प्रूव हुआ है। पहले क्या था, हम ब्रेस्ट कैंसर में सिर्फ कीमोथेरेपी दे सकते थे, उसके बाद आए हार्मोन थेरेपी। ना हार्मोन थेरेपी के बाद जो पेशेंट का ईस्ट्रोजन रिसेप्टर वो पॉजिटिव होता है, तो नया जो ट्रीटमेंट आया है जिसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में CDK4/6, मतलब पैल्बोसिक्लिब ऐसा नाम है। वो टैबलेट हार्मोन से के साथ देने से, लाइक जिनका कैंसर स्टेज 4 में है स्पेशली, तो उनका सर्वाइवल बहुत बढ़ गया है। लाइक हम बोल सकते हैं कि कीमोथेरेपी से अगर पेशेंट 6 महीने बच सके, तो ये स्पेशल ड्रग the survival can increase to more than 20 months, so the gross एक सर्वाइकल डिफरेंस हो गया है। इसके बाद है जो हर्सेप्टिन मीन्स हार्ट टू पॉजिटिव जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, उनका जब स्टेज 4 में ब्रेस्ट कैंसर चला जाता है, तो उनके लिए भी पहले था एक ट्रीटमेंट ट्रस्टोजुमैब, अब उसके बाद और दूसरा बहुत सारा मॉलिक्यूल आ गया है जो जिनका नाम बहुत डिफिकल्ट है, जैसे TDM1, कैडसाइला, उसके बाद और भी नाम है जो और ये जो एजेंट्स आते हैं, ये हम नाम विल बी डिफिकल्ट, बट ये बहुत सर्वाइवल इम्प्रूवमेंट किया है। सो हार्ट टू पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर जो है, उनका सर्वाइवल लास्ट 5 years में हैज चेंज ड्रामेटिकली। सो नए एजेंट से डेफिनेटली सर्वाइवल इम्प्रूव हुआ है। आगे सिर्फ हम कीमो यूज करते थे, अभी टारगेटेड यूज करते हैं, और हार्मोन भी नया आ गया है। और दूसरा चीज है, वी ऑल्सो हैव इम्यूनोथेरेपी नाउ, जो थोड़ा कॉस्टली हो सकता है, लेकिन अभी तो हम लोग का सब्सिडाइज रेट से इंडिया में हम दे सकते हैं। तो स्पेशली जो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है, जो सबसे हाई रिस्क है, यंग एज में अफेक्ट करता है, तो उसमें हम इम्यूनोथेरेपी यूज कर सकते हैं कीमो के साथ, तो उससे भी बहुत अच्छा सर्वाइवल इम्प्रूवमेंट हो गया है। सो वी हैव नाउ मच बेटर होप्स इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इवन इन स्टेज 4, वेरी अगर वो गुड। फैल जाए ये भी। इनफैक्ट जैसे इन्होंने बताया कि कीमोथेरेपी में बहुत एडवांसमेंट्स हुई हैं, टारगेटेड थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, इसी तरह रेडिएशन फील्ड में देयर हैव बीन ट्रिमेंडस एडवांसमेंट्स। सर्जिकल फील्ड में जैसे सेंटिनल नोड पहले नहीं होता था, तो उसी तरह रेडिएशन में अब हमारे पास टेक्निक्स हैं जिसको स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी बोलते हैं, सो स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी बोलते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को ब्रेन में भी ट्यूमर चला गया है, तो अब हमें उनको होल ब्रेन रेडिएशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको हम सिंगल सिटिंग ऑफ रेडिएशन, फोकस्ड रेडिएशन दे सकते हैं, जिसको स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी बोलते हैं। और इसी तरह अगर किसी को लिवर में डिसीज है, बोन में डिसीज है, बोन मेटास्टेसिस है, लिवर मेटास्टेसिस है, लंग मेटास्टेसिस है, तो उसमें हम स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी के थ्रू फोकस्ड रेडिएशन दे सकते हैं, जिससे कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव होती है, पेन रिलीफ बहुत बेटर होता है, और सर्वाइवल रिजल्ट्स भी बहुत बेटर होते हैं। सो मिसेस बीना ने पूछा है कि अगर आम में डॉक्टर सारिका कि अगर हाथ में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाए सर्जरी के बाद, तो क्या उसका क्योर है? सो आई वुड लाइक यू टू एम्फेसाइज ऑन लिम्फोडीमा प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंशन। और साथ ही आप हम शायद ये टॉपिक कवर कर चुके हैं। मिस्टर अम्बरीश ने पूछा है कि आपका ब्रैका ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर्स में क्या हमें ब्रैका इवैल्यूएशन करना चाहिए? सो वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रैका टेस्टिंग ट्रिपल नेगेटिव ट्यूमर्स में, खासतौर से यंग पेशेंट्स में, डेफिनेटली वी शुड गो फॉर ब्रैका टेस्टिंग। सो डॉक्टर सारिका, आर्म स्वेलिंग आफ्टर ब्रेस्ट सर्जरी, इस पे थोड़ा हाँ, तो ये नॉलेज। कहते हैं ब्रेस्ट सर्जरी के बाद में आर्म स्वेलिंग होना काफी कॉमन है और हो जाती है, और इसका ट्रीटमेंट एक तरीके से कंट्रोल होता है, और हम लाइफस्टाइल अपना चेंज करके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके लिए डॉक्टर ही बताते हैं कि मसाज कैसे करनी है, रात को कैसे बैंडेज करनी है, ऐसे कंप्रेशन बैंडेज कैसे बनानी है, कैसे फिजियोथेरेपी करनी है, कैसे उसका मूवमेंट करके रखना है, और इन सब चीजों से, और कैसे आप जब सोए तो किस तरीके से हाथ को रखें, इन सब चीजों के बारे में पूरी सलाह दी जाती है, और उससे काफी हद तक ये कम हो सकती है। और अगर आप इस पे ध्यान देंगे, जैसे कि बताया जा रहा है, बैंडेज को, पोजिशनिंग को, फिजियोथेरेपी को, तो मुझे लगता है काफी हद तक रिलीफ हो जाता है। और धीरे धीरे करके अगर आप इसे करते हैं तो काफी हद तक रिलीफ हो जाए। और कुछ कंप्रेशन के वियर्स भी आते हैं, और खुद बैंडेज लगाने वाली भी आती है। तो ये सब कुछ चीज सिखाई जाती है, और ये इसके लिए स्पेशल फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो सिखाते हैं किस तरीके से करना है आपको, जिससे कि ये जो स्वेलिंग है
ये कम हो जाए। और स्किन के लिए क्या आपको प्रिकॉशन रखने, ये सब कुछ चीजें बताई जाती हैं, सो मॉइस्चराइज करके लिम्फोडेमा इज रखना है। बेस्ट प्रिवेंटेड। बेस्ट है कि आप स्वेलिंग आने ही ना दें, आप एक्सरसाइज करते रहें, क्योंकि सर्जरी और रेडिएशन दोनों के बाद लिम्फोडेमा का रिस्क बढ़ जाता है। सो सर्जरी के बाद जो आपको डॉक्टर्स, आपके जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, वो आपको जो एक्सरसाइजेस बताती हैं, उनको प्लीज़ रिलीजियसली करेंगे तो ये स्वेलिंग आपके हाथ में आएगी ही नहीं। आई थिंक अब हमें, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो यू शुड मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. Dr. Chandrani, what is, I think cervical cancer is the second most common cancer in Indian females. तो मैं लोगों को ये बता दूं कि सर्विक्स, बहुत लोग सर्विक्स और यूट्रस में कंफ्यूज करते हैं. तो बेसिकली यूट्रस होता है बच्चेदानी, और बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं. मतलब जहाँ पे यूट्रस खत्म होके वेजाइना के अंदर खुलता है, उस हिस्से को सर्विक्स बोला जाता है. सो डॉक्टर चंद्रानी, आप ये बताइए कि इंडिया में पहले सर्वाइकल कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे ब्रेस्ट कैंसर टॉप पर आ रहा है और सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस कम हो रहा है. सो ये बहुत खुशी की बात है. आपको क्या लगता है कि क्या वजह है जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर कम हो रहा है? क्या हम अपने लोगों को यहाँ पे सलाह दे सकते हैं? सर्वाइकल कैंसर एक्चुअली जो है ये होता है लाइक वायरस रिलेटेड फ्रॉम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. और ऑल्सो ये ऐसे होता है कि अनसेफ सेक्स, इस HIV, ये सब रिस्क फैक्टर्स होता है सर्वाइकल कैंसर का. नाउ अभी क्या हुआ है इंडिया में, वी हैव गॉट लॉट ऑफ अवेयरनेस कैंपेन्स एंड लॉट ऑफ गवर्नमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स जहाँ पे हम लोग सर्वाइकल कैंसर के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं पैप्समियर, जहाँ से हम वो वो रीजन वहाँ से एक टेस्ट करके लिक्विड लेकर टेस्ट करके देखते हैं कि कोई कैंसर है कि नहीं अर्ली स्टेज में, ये चेक करते हैं. और ये भी चेक करते हैं कि कोई वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो कॉज होता है वो वहाँ पे है नहीं. तो ये जो टेस्ट होता है ये अभी बहुत जगह पे लोकली गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स या लोकल काउंसिल से स्मीयर ज़्यादा हो रहा है. So it has spread like from cities to even villages, towns. So as a people are getting more aware and people are made aware कि safe sex ये भी करो, और HIV और AIDS का जो रिस्क होता है वो भी people are aware of. So ये सब के लिए सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस ग्रेजुअली कम हो रहा है. और ब्रेस्ट इंसिडेंस क्यों बढ़ रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क फैक्टर्स ये है कि सीडेंटरी लाइफ में हम लोग का लाइफ अभी चेंज हो गया है. लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज कम करते हैं, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल कम हो गया है. सो वेस्टर्न लाइफस्टाइल हैज बीन अडेप्टेड, सो इंडियन लाइफस्टाइल हैज बिकम मोर वेस्टर्न. तो इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी अभी बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों का बच्चा वो भी देर में होता है, पहले आगे होते थे तो वो लेट लाइक चाइल्ड बर्थ, फिर ये सब और डिफरेंट अल्कोहल स्मोकिंग जो जो रिस्क फैक्टर्स वो भी वेस्टर्न लाइफस्टाइल एडेप्टेशन के लिए ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है. तो सर्विक्स इसीलिए कम हो रहा है अवेयरनेस के लिए, और ब्रेस्ट इसलिए बढ़ रहा है. तो दोनों ही ऐसे हो रहा है. वेरी गुड. सो ब्रेस्ट कैंसर होता है अगर आप बच्चे नहीं करती हैं, आप ब्रेस्ट फीड नहीं करती हैं, यू आर गेटिंग मैरिड लेट, अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन सिक्रेशन. सर्वाइकल कैंसर होता है अगर आपके बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं. सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर बैलेंस, गेट मैरिड ऑन टाइम, ब्रेस्ट फीड योर चिल्ड्रन एंड कीप ऑन डूइंग योर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशंस. डॉक्टर सारिका, आप थोड़ा सा, बहुत लोग पैप्समियर नहीं कराते. इनफैक्ट मैं देखती हूँ बहुत सारी डॉक्टर्स भी पैप्समियर नहीं कराती हैं. एंड क्योंकि लोगों को लगता है कि पैप्समियर बहुत खतरनाक सी चीज़ है, पता नहीं बहुत पेनफुल होता होगा, जैसे लोग मैमोग्राफी से डरते हैं. सो आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो पैप्समियर बहुत सिंपल टेस्ट है, तो आप बताएं थोड़ा सा रिगार्डिंग पैप्समियर हाँ टू द देखिए, पब्लिक. जैसे कभी भी आपकी अगर जब भी कोई भी महिला गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करती है, जैसा एक गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है वही 30 सेकंड के लिए आपको लिटाया जाता है और इंस्ट्रूमेंट से डॉक्टर देखती हैं. उसी टाइम में 30 सेकंड के अंदर वो टेस्ट भी हो जाता है, उसमें कोई ऐसा दर्द नहीं होता. बस ये है कि लेट जाने के बाद में अगर आपको इंस्ट्रूमेंट डालने के बाद कोई डिस्कम्फर्ट होता है तो उस तरीके का डिस्कम्फर्ट होता है. और डिस्कम्फर्ट भी आप कम कर सकती हैं अगर आप रिलैक्स करती हैं अपने पेरिनियल एरिया को और वजाइना को. तो जो पेशेंट उसको रिलैक्स करके आते हैं, एप्रीहेंसिव नहीं होते हैं, उनका तो स्मूथली होता है. और जो लोग अपने पैरों को टाइट कर लेते हैं ऐसे, तो उनका पेनफुल भी हो सकता है, क्योंकि वो जगह ही नहीं दे रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट देख पाए.
तो इंस्ट्रूमेंट इतना छोटा होता है। दूसरा, हम एक छोटा सा जो ब्रश होता है, मतलब कोई ऐसा बायोप्सी नहीं होती है उसमें, तो एक ब्रश की सहायता से सिर्फ सेल को झाड़ के ले लिया जाता है, तो इसमें कोई दर्द नहीं होता। इसलिए सबको ये पता होना चाहिए। मुझे इसमें आपने जैसे बोला कि डॉक्टर भी नहीं कराते हैं, इसका भी मुझे समझ नहीं आता कि एक लोगों को प्राइवेसी की शर्म होती है, या ये होता है कि अपना प्राइवेट पार्ट्स को दिखाने की, जिसमें कि सिम्पटम ना हो तो हम क्यों जाए डॉक्टर के पास, ये वाली एक सिचुएशन रहती है। पर मैं हर एक को ये बोलना चाहूंगी, चाहे सिम्टम नहीं है, फिर भी हमेशा पैप स्मीयर कराना चाहिए। 21 ईयर्स के बाद आपको हर 3 ईयर्स पे पैप स्मीयर कराना चाहिए, और क्या कहते हैं, ये 30 ईयर्स तक कराना चाहिए। 30 ईयर्स के बाद आप एचपीवी टेस्टिंग भी करा सकती हैं। अगर आप एचपीवी टेस्टिंग और पैप स्मीयर साथ करा रही है तो आप 5 ईयर्स पे करा सकती है। तो 3 साल में अगर 30 सेकेंड के लिए आपको वो थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो गया और आप उससे बचाव हो रहा है, तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा है। हर महिला को सामने आना चाहिए, और अपनी लाइफ के लिए, जो लोगों को कैंसर हो जाता है उनसे पूछिए कि वो कितना रिग्रेट करते हैं इस चीज को कि उन्होंने पैप स्मीयर नहीं कराया। तो इसलिए हर एक को पैप स्मीयर जरूर कराना चाहिए, और घर में आसपास में अपनी बहनों को, अपनी भाभी को, हर एक को मोटिवेट करना चाहिए कि आपने पैप स्मीयर कराया है, आपने पैप स्मीयर कब कराया है। तो हर एक को, और अपनी बेटी की शादी हो जाए तो उसको बोलना चाहिए तुमने पैप स्मीयर कराया है कि नहीं कराया। जब हम ये सब चीजें ऐसे अवेयरनेस फैलाएंगे तो मेरे ख्याल से काफी लोग करेंगे। और वैसे तो ये ऐसा होना चाहिए, स्क्रीनिंग की सभी को करानी है और ये करानी ही पड़ेगी, पर क्योंकि इंडिया में इतने फंड्स नहीं है, इसलिए हमको अपॉर्चुनिस्टिक जाना पड़ता है। जो लोग करते हैं, अस्पताल जाते हैं, वही करा पाते हैं। तो हमको खुद ही आगे आना होगा, अदरवाइज स्क्रीनिंग ठीक से नहीं हो सकती। और जो बाहर की कंट्रीज हैं उसमें हम काफी कम ला चुके हैं सर्विक्स कैंसर को, और इंडिया में सिर्फ शर्म के कारण और झिझक के कारण हमारे सर्विक्स कैंसर ज्यादा है। कितनी अच्छी बात बोली डॉक्टर सारिका आपने कि देखिए ये बात समझ लीजिए कि महिलाएं ही पूरे समाज का सूत्रधार हैं। अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो आपका घर परिवार अच्छे से चलेगा। अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो आप अपने परिवार को अच्छे से पढ़ा पाएंगी। तो अगर आप अपने आप को प्यार करती हैं तो अपने एक जैसे हम पूछते हैं ना तो, सखी तुमने क्या खरीदा, तुमने कोई नई साड़ी ली, उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये पूछना कि तुमने अपने कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट कराए। क्योंकि आप ये बात समझ रही, स्क्रीनिंग करने का मतलब क्या है? स्क्रीनिंग का मतलब है कि आप उस टाइम पे टेस्ट करा रहे हैं जब आपको कोई भी सिम्टम नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि अगर मैंने टेस्ट करा लिया तो कुछ निकल आएगा। देखिए निकलना तो है ही। अगर आप स्क्रीनिंग करा लेंगे, क्योंकि एक कैंसर को बनने में, खास तौर से सर्वाइकल कैंसर को बनने में कई साल लगते हैं। तो भगवान और हमें बहुत टाइम मिलता है कि हम अपनी बॉडी के चेकअप्स करा लें। बट हम जब बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि पानी सिर के ऊपर से निकल चढ़ जाता है, तब हम टेस्टिंग के लिए जाते हैं। उस टाइम पे हम स्टेज 3 या स्टेज 4 में डिसीज को पकड़ते हैं, जिसकी वजह से उस टाइम पे उसको क्योर करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज ये बात ध्यान रखिए कि आप ये मत, बॉडी पार्ट्स को डोंट डिवाइड देम इनटू अ मेल पार्ट एंड अ फीमेल पार्ट। अ बॉडी पार्ट इज अ बॉडी पार्ट। अगर आप ये समझेंगे कि ब्रेस्ट भी ब्रेस्ट है या सर्विक्स है, दोनों के दोनों वो भी आपकी बॉडी का हिस्सा है। और अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका घर परिवार भी अच्छे से चलेगा, और जो कष्ट है वो आपको खुद को ही झेलना है। सो आप डोंट डिस्टिंग्विश बॉडी पार्ट्स इनटू मेल और फीमेल पार्ट्स। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, जैसे आप अपने चेहरे का ध्यान रखती हैं उसी तरह आपको अपने बॉडी पार्ट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। यू हैव टू वर्शिप इट, वर्शिप योर बॉडी। सो डॉक्टर चंद्रानी, एक जो हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस बहुत कम हो गया है, वन इज बिकॉज ऑफ पैप स्मेयर। एक चीज़ जो मैं और यहाँ पे ऑडियंस को बताना चाहूँगी वो ये है कि इवन इफ आपका यूट्रस निकल चुका है, लेकिन अगर आपका सर्विक्स है, तो बहुत लोगों का फाइब्रॉइड के लिए सर्जरी होती है जिसमें हिस्ट्रेक्टमी हो जाती है, बट सर्विक्स आपका इंटैक्ट होता है। तो पैप स्मीयर मतलब अगर आपका सुप्रा सर्वाइकल हिस्ट्रेक्टमी हुआ है, even then you should go for a pap smear, and pap smear should ideally be done around 10th day of your period. It is not to be done immediately after your periods. So Dr. Chandrani, cervical cancer vaccine, it has, I think it's one of the revolutions. जिस तरह से स्मॉल पॉक्स कम हो गया इंडिया से, so मुझे लगता है कि अगर हम पैप स्मीयर और सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन दोनों लगवा लें और सेक्स एजुकेशन हम बच्चों को दें, हेल्दी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस करें, तो एक सर्वाइकल कैंसर जिसको मैं बोलती हूँ कि मोस्ट प्रिवेंटेबल, मोस्ट इजीली डायग्नोस्ड कैंसर एंड द ओनली कैंसर फॉर विच वी हैव अ वेरी इफेक्टिव वैक्सीन प्रोग्राम अवेलेबल। सो अगर हम ये करें तो हम सर्वाइकल कैंसर को दुनिया से ख़त्म कर सकते हैं।
So would you like to throw some light on सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन एज ग्रुप, जैसे 9 इयर्स के एज से देना चाहिए, किस एज ग्रुप तक दे सकते हैं, प्लीज आप ऑडियंस को बताइए जरा। तो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन दो तरह के होते हैं, दोनों का, एक का नाम है गार्डासिल और दूसरा है सर्वेरिक्स। तो ये गार्डासिल जो है, इनमें वी आर टारगेटिंग ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, कि ये वायरस के अगेंस्ट ये वैक्सीन देते हैं। तो गार्डासिल वैक्सीन में 4 तरह के ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को हम टारगेट करते हैं। तो ये वैक्सीन वी कैन गिव टू फीमेल्स एज वेल एज यंग मेल्स, क्योंकि मेल में भी जो पिनाइल कैंसर होता है पेनिस का, वो भी इस वैक्सीन से प्रिवेंट होता है। और दूसरा है सर्वेरिक्स, वो है दूसरा वाला सर्विक्स वैक्सीन, वो मेनली फीमेल्स के लिए है। एज है फ्रॉम द एज ऑफ 9 to 16, कि जब सेक्सुअल एक्सपोजर ना हो उसके पहले ये वैक्सीन ज़्यादा काम करता है। तो अगर एक्सपोजर हो जाए फिर वैक्सीन का इफेक्टिवनेस चला जाता है। सो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ 9 वैक्सीन देना। तो ये बहुत अच्छी बात डॉक्टर चंद्रानी ने बताई कि आइडियली आप स्टार्टिंग एट 9 इयर्स ऑफ एज, 9 साल की उम्र से आप अपने बच्चे को वैक्सीनेशन शुरू कर सकते हो। सो अगर आपका बच्चा, आपकी डॉटर 9 to 14 इयर्स की एज ग्रुप में है, तो सिर्फ 2 डोजेस की ज़रूरत होती है, विच ये आम में दी जाती है, बाजू में दी जाती है, और मिनिमम इंटरवल बिटवीन द टू डोजेज शुड बी एटलीस्ट 6 मंथ्स। बट अगर आप किसी वजह से आपकी एक डोज मिस हो गई है, तो भी आप साल भर तक दूसरी वैक्सीन दे सकते हैं। और अगर आप 15 इयर्स के ऊपर हैं, तो 3 डोजेस की ज़रूरत होती है, जिसका हेपेटाइटिस का जिस तरह से प्रोटोकॉल है 1, 2 and 6, 0, 1 and 6, उसी तरह से इसको दिया जाता है। किसी वजह से आपकी अगर एक डोज मिस हो गई है, तो आपको पूरा साइकिल फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन स्टिल गेट द थर्ड डोज विद इन 1 ईयर। और किसी ने पूछा है, मिसेस वॉयला इज आस्किंग, इज देयर एनी रिस्क ऑफ हैविंग सर्वाइकल कैंसर इवन आफ्टर टेकिंग द वैक्सीन। ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब मैं ये देना चाहूँगी कि जैसे डॉक्टर चंद्रानी ने बताया कि HPV वैक्सीन जो है, ये आपका वैक्सीन बिकॉज HPV वायरस की वजह से हो रहा है। तो अगर आपको सेक्सुअल एक्सपोजर हो चुका है, तो वैक्सीन में नॉट बी कम्प्लीटली प्रोटेक्टिव, और ये वैक्सीन HPV की सारी स्ट्रेन्स के अगेंस्ट प्रोटेक्टिव नहीं होती, और ये उतनी एडिनो कार्सिनोमा के अगेंस्ट उतनी इफेक्टिव नहीं है जितने कि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के लिए इफेक्टिव है। तो अगर आपने वैक्सीनेशन ली है, तो आपका रिस्क कम हो जाता है, बट इट डज नॉट बिकम जीरो। So even if you have taken the vaccine, even then pap smear should continue, safe sexual practices have to continue. और एक क्वेश्चन पूछ रही हैं, देवयानी जी पूछ रही हैं डॉक्टर सारिका, व्हाट इज मिनिमम एज फॉर गेटिंग सर्वाइकल कैंसर? क्या 20 साल की लड़कियों को भी सर्वाइकल कैंसर हो सकता है? देखिए, मैंने 27-28 साल की लड़कियों को आराम से देखा है कैंसर, और किसी भी एज में हो सकता है कैंसर। और अर्ली अगर बहुत जल्दी इनिशिएशन ऑफ सेक्स हुआ है, तो उस समय, क्योंकि सर्विक्स की डेवलपमेंट पूरी मेच्योरिटी नहीं हुई होती है, और अगर HPV का इन्फेक्शन होता है, इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, तो इतनी जल्दी भी वो बन सकता है। तो मैं कहूँगी 20s में भी कैंसर हो सकता है। So, सर्विक्स कैंसर 20s में भी हो सकता है, पर ज्यादातर कैंसर हमको 30s में दिखते हैं, 40s में दिखते हैं, और किसी भी एज ग्रुप में, आजकल तो हर एज ग्रुप में दिखते हैं, पोस्ट मेनोपॉजल भी दिखते हैं। पर जो ये मेनली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का कैंसर है, तो ये 50 साल 35 to 50 इयर्स में मेजोरिटी केसेस दिखाई देते हैं, और 20s में भी दिखाई देते हैं कुछ कुछ लोगों में। तो इसीलिए जो सर्वाइकल, आपने जैसे पहले बताया था, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग का रोल इसीलिए है, तभी हम 21 साल की उम्र से सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग शुरू करते हैं, बिकॉज अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, तो आपको सर्वाइकल कैंसर का रिस्क है। इट्स एज सिंपल एज दैट। इफ यू आर अ फीमेल, यू आर एट रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। 1% मेल्स को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। सो आप ये मत सोचिए कि ये कैंसर किसी पड़ोसी के घर की बीमारी है, एनी बडी कैन हैव इट। सो इसलिए इम्पॉर्टेंट है अपनी स्क्रीनिंग्स कराना, टाइम पे टेस्टिंग कराना। और ये समीक्षा जी पूछ रही हैं कि क्या यूट्रस अगर 5 साल पहले निकाल दिया गया था, तो भी क्या सर्वाइकल कैंसर हो सकता है? तो इसका जवाब यही है कि अगर आपका यूट्रस निकाला गया है, बट आपका सर्विक्स है वहाँ पर, तो आपको सर्विक्स पे कैंसर होने का खतरा है, इसीलिए आपको पैप्समियर भी कराना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका यूट्रस निकला है, लेकिन आपने उस टाइम पे उसकी बायोप्सी कलेक्ट नहीं की, सो बहुत बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनका यूट्रस रिमूवल के बाद
वो बायोप्सी कलेक्ट नहीं करते और कुछ टाइम पे उसके बाद वॉल्ट रिकरेंस हो जाता है. डॉक्टर चंद्रानी, वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन वॉल्ट रिकरेंस कि क्यों हमें, अगर यूट्रस किसी भी वजह से रिमूव हुआ है तो हमें उसकी बायोप्सी कलेक्ट करना क्यों जरूरी है? डॉक्टर चंद्रानी. क्योंकि अगर यूटेरस निकाला भी गया तो वहाँ पे जो वॉल्ट रहता है वहाँ पे रेकरेंट कैंसर हो सकता है ना. ये एक रेकरेंट कैंसर होने से उनका वी नीड टू ट्रीट देम अगेन ऑब्वियसली. तो इसीलिए वी नीड टू टेक बायोप्सी फ्रॉम दैट साइड टू चेक एंड ट्रीट दैट कैंसर. ना ये रेकरेंट कैंसर जब होता है तो वॉल्ट रेकरेंस होने से वी शुड ऑल्सो चेक लाइक मेटास्टेटिक वर्कअप मीन्स मतलब सीटी स्कैन करके देखना होता है कि कैंसर और दूसरी जगह फैला है कि नहीं या वहाँ पे ही रेकरेंट है. तो वो देखकर उसके बाद ट्रीटमेंट ठीक करना होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर वो कैंसर स्प्रेड हो गया तो कीमोथेरेपी का रोल वहाँ पे आ जाता है. तो इसीलिए रेकरेंस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द ट्रीटमेंट. सो इसका मतलब जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे डॉक्टर सारिका और डॉक्टर चंद्रानी और मैं आपको देना चाहूँगी वो यही है कि आपके कहीं पे भी किसी भी बॉडी पार्ट के ऑर्गन की अगर सर्जरी हुई है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कलेक्ट द बायोप्सी रिपोर्ट. बहुत बार हमारे पास महिलाएं आती हैं जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ होता है और वो गॉल ब्लैडर को बस फेंक दिया जाता है, उसकी बायोप्सी नहीं होती है एंड देन दे कम बैक विद अ वेरी एडवांस्ड कैंसर. सो अगर आपकी कहीं की भी सर्जरी हुई है तो वो रिपोर्ट नॉर्मली बायोप्सी की रिपोर्ट 6 या 7 दिन में आती है. सो हम कई बार वो रिपोर्ट कलेक्ट करना भूल जाते हैं. आपकी रिपोर्ट डिस्चार्ज समरी में लिखा होता है कि प्लीज़ कलेक्ट योर बायोप्सी रिपोर्ट, पर आप लोग भूल जाते हैं कि हमें वो रिपोर्ट भी कलेक्ट करनी है और आप डॉक्टर को नहीं मिलते हैं. सो आप कहीं पे भी कोई, तो आप, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपने कोई सर्जरी कराई है तो डॉक्टर के पास वापस जाइए, पूछिए कि उस रिपोर्ट में क्या था, क्या मुझे किसी और डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, क्या मुझे आगे कोई फर्दर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है. ये बहुत ज़रूरी है. डॉक्टर सारिका, एक पेशेंट पूछ रहे हैं कि क्या अगर डैम्प क्लॉथ हम पीरियड्स के दौरान यूज़ कर लेते हैं, क्या उसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर हो सकता है? नहीं, देखिए डैम्प क्लॉथ की वजह से कैंसर नहीं होता. 90% केसेस में कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है जो कि सेक्स के से आता है और जिनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं उनको ज्यादा रिस्क होता है. इसीलिए सर्विक्स कैंसर का रिस्क उसमें ज्यादा है जिनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं. तो और इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है. जैसे किसी को एड्स हो या कोई इम्यूनो डिफिशियंसी हो या फिर वो किसी भी तरह के ट्रांसप्लांट की सर्जरी के बाद इम्यूनो डिप्रेशन के लिए कोई दवाइयां ले रहे हो, उन लोगों को सर्विक्स कैंसर ज्यादा पाया जाता है. डैम्प क्लॉथ से सर्विक्स कैंसर नहीं होता, पर हाँ आपको इन्फेक्शन हो सकता है वजाना का. पर सर्विक्स कैंसर ज्यादातर नहीं होता. सो सर्वाइकल कैंसर का भी, जैसे हम लोग सब स्क्रीनिंग पे बार बार इसीलिए इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि अगर आपका स्क्रीन डायग्नोस्ड कैंसर है, मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर भी आपका स्क्रीन डायग्नोस्ड है, रूटीन मैमोग्राफी में हुआ, तो आपको कंप्लीट रिमूवल की ज़रूरत नहीं है. हो सकता है आपको सिर्फ पार्शियल ब्रेस्ट रिमूवल कराना पड़े और थोड़ा सा रेडिएशन करना पड़े, कीमोथेरेपी की आपको ज़रूरत ना पड़े. इसी तरह अगर बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है तो अगर आप बहुत अर्ली स्टेज में आती हैं, स्टेज 1 में आती हैं, तो सिर्फ सर्जरी कैन बी क्योरेटिव. बट अगर स्टेज 2B बियॉन्ड हो जाता है तो उसमें हमें रेडिएशन, कीमो, दोनों, एक्सटर्नल रेडिएशन और इंटरनल रेडिएशन दोनों चीज़ें कंबाइन करनी पड़ती हैं. तो रेडिएशन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताना चाहूँगी कि रेडिएशन 2 टाइप का होता है, जिसको एक्सटर्नल रेडिएशन बोलते हैं और इंटरनल रेडिएशन बोलते हैं. एक्सटर्नल रेडिएशन का मतलब है कि आप दूर से किरणों द्वारा कैंसर को ख़त्म करते हो. ये बिल्कुल पेनलेस ट्रीटमेंट है. इट्स हार्डली अ 2 मिनट ट्रीटमेंट. ओपीडी बेसिस पे होता है, कोई दर्द नहीं होता आपको. ट्रीटमेंट के लिए कोई हॉस्पिटल में एडमिट रहने की ज़रूरत नहीं होती. सो सर्वाइकल कैंसर के लिए जो यूजुअल ट्रीटमेंट है वो 25 to 28 सिटिंग्स होती हैं, हफ्ते में 5 दिन इसका ट्रीटमेंट होता है. और जब आपका एक्सटर्नल रेडिएशन हो जाता है उसके बाद 1 या 2 हफ्ते के गैप पे हमें सर्जरी, अगर सर्जरी नहीं भी हुई है तो हमें इंटरनल रेडिएशन देना पड़ता है, जिसमें एक छोटा सा एप्लीकेटर रखा जाता है बच्चेदानी के मुंह पर और वहाँ से रेडिएशन देते हैं. वो भी कम्प्लीटली पेनलेस ट्रीटमेंट है. तो ये दोनों ट्रीटमेंट्स अगर आप करती हैं, एक्सटर्नल रेडिएशन प्लस इंटरनल रेडिएशन, तो आपके ठीक होने के चांसेस पूरे होते हैं. अगर आप छोड़ देती हैं एक ट्रीटमेंट कि सिर्फ एक्सटर्नल ट्रीटमेंट करा के आप चली जाएं और इंटरनल ट्रीटमेंट ना कराएं, ये आपका कीमोथेरेपी भी इंडिकेटेड है और आप कीमोथेरेपी रेडिएशन के साथ में ना लें
तो इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट करेंगे तो डेफिनेटली इनकम्प्लीट रिजल्ट्स मिलेंगे। डॉक्टर सारिका, क्या कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो अर्ली स्टेज सर्वाइकल कैंसर के आपके पास आते हैं? हाँ, जैसे कई। नॉर्मली नहीं, नॉर्मली जैसे हम कहते हैं कि अगर 4 सेंटीमीटर से छोटा ट्यूमर है तो आपको सर्जरी पे जाना चाहिए बच्चेदानी के मुंह में। अगर 4 सेंटीमीटर से बड़ा ट्यूमर है देन रेडिएशन प्लस कीमो एक्सटर्नल एंड इंटरनल इज अ बेटर ट्रीटमेंट। तो कुछ केसेस ऐसे भी होते होंगे जिनका 4 सेंटीमीटर से छोटा ट्यूमर होता है और उनका यूट्रस रिमूव हो जाता है, फिर भी कुछ पेशेंट्स में उसके बाद रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है। इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो देखिए, सबसे पहले मैं तो इसमें सर्विक्स कैंसर में बताना चाहूंगी कि हमारे पास, क्योंकि सर्विक्स कैंसर के सिम्टम भी बहुत जल्दी से आ जाते हैं। पोस्ट कॉर्टल ब्लीडिंग का मतलब है कि सेक्स करने के बाद थोड़ी सी भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होना, या फिर माहवारी के बीच में माहवारी होना, या फिर बहुत ज्यादा बदबूदार पानी आना, या फिर माहवारी के बाद स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होना। इससे एकदम तुरंत विजिबल हो जाता है सिम्टम कि कुछ प्रॉब्लम है, और कई लोग उसी समय तुरंत आ जाते हैं डॉक्टर के पास। ऐसे में अर्ली ही डिटेक्शन होता है, और इसका मतलब छोटी 4 सेंटीमीटर से छोटी ग्रोथ है तो उनकी सर्जरी होती है, और अगर 4 सेंटीमीटर के आसपास की ग्रोथ है तो सर्जरी करने के बाद पता चलता है कि उनको रेडिएशन की जरूरत है या नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि बताया जाता है कि 50% चांस तो रहता ही है ज्यादातर, अगर हम कितना भी कोशिश करें कि हम बाद में रेडिएशन ना, कितना भी अच्छा सिलेक्शन करें, फिर भी काफी लोगों को रेडिएशन की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये पहले ही बताते हैं कि रेडिएशन आपको ट्रीटमेंट जो बाद में लेना है वो हम बताएंगे जब सर्जरी हो जाएगी, और पता चल जाएगा कि उसके जो जो हमने सब कुछ चीज निकाली है उसमें कोई पॉजिटिव मार्जिन या कोई नोट पॉजिटिव तो नहीं है। सो यहाँ पे फिर से डॉक्टर सारिका ने उसी चीज़ को एम्फेसाइज किया है कि अगर आपका यूट्रस रिमूव हुआ है उसकी बायोप्सी रिपोर्ट प्लीज़ ज़रूर कलेक्ट करिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि क्या मेरा ट्रीटमेंट पूरा हो गया है, क्या मुझे फर्दर रेडिएशन और साथ में कीमो की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स में यूट्रस रिमूवल के बाद भी रेडिएशन और कीमो देना पड़ता है टू गेट बेटर रिजल्ट्स। और फॉलो अप मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका ट्रीटमेंट हो गया है, आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपका ट्यूमर पूरी तरह निकल गया, तो भी 3 मंथली आपको चेकअप कराना है। उसका उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। अभी हम नेक्स्ट ट्यूमर के ऊपर फोकस करते हैं जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियल कैंसर या यूट्राइन कैंसर। डॉक्टर चंद्रानी, आप कुछ बताएंगे कि हाउ इज़ यूट्राइन कैंसर ट्रीटेड और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? क्या ये कैंसर मेल्स में होता है, यूट्राइन कैंसर? सो यूटेराइन कैंसर इज इन फॉर फीमेल्स ऑब्वियसली, और ये होते हैं फॉर पेशेंट्स मेनोपॉजल स्टेज, और पोस्ट मेनोपॉज मतलब मेनोपॉज के बाद, ठीक है। तो जब मेनोपॉज के बाद पेशेंट का ब्लीडिंग बंद हो जाता है, सो सडनली इफ देयर इज एनी सडन पोस्ट मेनोपॉजल लाइक ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, सडन ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, तो उसको डेफिनेटली एक सिम्टम सोच के डॉक्टर के पास अर्जेंटली जाना है, क्योंकि दैट माइट बी द फर्स्ट साइन ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर। दूसरा चीज है, एंडोमेट्रियल कैंसर में ज्यादा सिम्टम्स हर वक्त नहीं देख सकते, ब्लीडिंग माइट बी द ओनली सिम्टम। और दूसरा चीज है, थोड़ा उम्र बढ़ने से होता है, लेटर एज। और थर्ड है कि कभी कभी पेट में दर्द हो सकता है इसके साथ, या ये जो जब मेनोपॉज हो जाता है उसके बाद इरेगुलर साइकिल, सडनली ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, 2-3 दिन रहता है, उसके बाद 2-3 महीने बाद फिर से स्टार्ट होता है, ऐसा कुछ चलता है एंडोमेट्रियल कैंसर में। तो ये नॉर्मल सिम्टम है एंडोमेट्रियल कैंसर का। रिस्क फैक्टर अगर सोचे तो एंडोमेट्रियल कैंसर वेस्टर्न कंट्री में ज्यादा होते हैं, और उसका मेन रिस्क फैक्टर होता है कि ओबेसिटी, या इंक्रीज एज, ज्यादा फैट खाने, ये सब एंडोमेट्रियल कैंसर के ज्यादा रिस्क फैक्टर होते हैं। कुछ वगैरह जेनेटिक भी है, लेकिन वो उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि इंडिया में रिस्क थोड़ा अभी भी कम है। लेकिन जेनेटिक सिंड्रोम्स कुछ होते हैं एंडोमेट्रियल कैंसर में, कि फैमिली में कोलोन कैंसर या और कुछ और दूसरी तरह का कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ये सब कंबाइन करके जेनेटिक रिस्क फैक्टर से भी एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है ना। एंडोमेट्रियल कैंसर का मेन जो है कि पहले उसको देखना है कि वो यूटेरस से बाहर गया है कि यूटेरस के अंदर है। अगर यूटेरस के अंदर हो तो उसका फर्स्ट ट्रीटमेंट है सर्जरी।
तो सर्जरी, डॉक्टर सारिका कैन थ्रो सम लाइट ऑन व्हाट सर्जरीज वी डू, बट ऑब्वियसली सर्जरी इज द मोस्ट क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। एंड आफ्टर सर्जरी वो जो बायोप्सी आपने बोला, तो बायोप्सी देख के देखना पड़ता है कि उम्र कितना है, अगर 60 ईयर्स के ऊपर है या नीचे है, सर्जरी कैसे हुआ है, कि लिम्फ ग्लैंड रिमूव हुआ है कि नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग रेडिएशन देते हैं, ब्रेकीथेरेपी देते हैं, या उसके साथ कीमोथेरेपी भी ऐड करते हैं। अगर ये कैंसर यूट्रस से बाहर चला गया हो, तो उसके लिए सर्जरी और नहीं दे सकते। उसके लिए हम फिर पेट स्कैन करते हैं, देखते हैं कि कैंसर कहाँ पे है, एक बायोप्सी लेते हैं, उसके बाद मेन ट्रीटमेंट विल बी कीमोथेरेपी। यही डॉक्टर बात है। सारिका, हाँ, मैं डॉक्टर इसमें ना ये फिर से मैं इसमें बताना चाहूंगी कि ये जो यूट्रस कैंसर की सर्जरी है, वो सर्जरी नहीं होती जिसमें आप सिर्फ यूट्रस निकलवाते हैं। जो एक बिनाइन अगर आपको कोई भी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, आपने कोई बायोप्सी नहीं करवाई, सीधे जाके अपनी हिस्टेक्टमी करा ली, बाद में पता चला कि वो कैंसर है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी इनकम्प्लीट सर्जरी हो गई है। और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए कि आप प्रॉपरली, अगर आपको ब्लीडिंग हुई है या इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, या अल्ट्रासाउंड के अंदर कोई मैस उसके अंदर आ रहा है, तो सीधे सर्जरी के में जाने की बजाय पहले बायोप्सी कराएं, कंफर्म करें कि ये कैंसर है या नहीं है। अगर ये कैंसर है तो इसकी कैंसर की सर्जरी होगी, जैसे कि पूरी सर्जरी होने के लिए लिम्फ नोड्स भी निकाली जाती हैं, और कुछ ऐसे कैंसर है जिसके अंदर बाकी और दूसरी चीजें भी निकाली जाती हैं। तो जब हम पूरी सर्जरी कर लेंगे, हम लिम्फ नोड निकालेंगे, तभी पता चलेगा कि किस स्टेज का कैंसर है। अगर लिम्फ नोड निकालेंगे ही नहीं तो स्टेज 3 को मिस कर देंगे। तो ऐसे पूरा सर्जरी करना जरूरी है। जिन लोगों की इनकम्प्लीट सर्जरी है, उनको दोबारा सर्जरी भी कराने की जरूरत पड़ती है, तो तुरंत ही दोबारा सर्जरी करानी पड़ती है। और इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, और सर्जरी एक्चुअली मेन ट्रीटमेंट है। ये कैंसर भी ऐसा ही है जिसके अंदर विजिबल हो जाते हैं साइन, और ब्लीडिंग में कुछ प्रॉब्लम आती है और तुरंत पता चल जाता है। ज्यादातर केस 90% केस इसमें स्टेज 1 में डायग्नोस होते हैं, क्योंकि इसमें महिला को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, या महावारी बंद होने के बाद महावारी चालू हो जाती है। तो ये कैंसर भी अर्ली डिटेक्ट हो सकता है, अगर महिला उसको इग्नोर ना करे, ये सिम्टम जो बार बार बॉडी दे रही है उसे इग्नोर ना करे, तो वो अर्ली डिटेक्ट हो जाते हैं। डॉक्टर सारिका ने भी बार बार इंसिस्ट किया, डॉक्टर चंद्रानी ने भी आपको बताया कि एंडोमेट्रियल कैंसर का मेन सिम्टम है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। मतलब अगर आपको मेनोपॉज हो चुका है, आपके पीरियड्स रुक चुके हैं, उसके बाद अगर एक भी धब्बा लगता है आपको, प्लीज दोबारा सुनिए इस चीज को, अगर एक भी धब्बा अगर आपके कपड़ों पे लगता है मेनोपॉज होने के बाद, उस सिम्टम को प्लीज इग्नोर मत करिए, शर्म मत करिए, बहू को कैसे बताऊंगी, बेटे को कैसे बताऊंगी, हस्बैंड को कैसे बताऊंगी, आपने कुछ ऐसा नहीं किया है जिसकी वजह से वो ब्लीडिंग हुई है, प्लीज ये याद रखिए। तो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होते ही, और अगर एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखने की है कि कुछ लोग जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए ट्रीटमेंट ले रही होती हैं, कुछ महिलाएं जिनकी टेमोक्सिफेन की टैबलेट चलती है, उसकी वजह से भी यूट्रस की लाइनिंग थिक हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया। तो अगर आप हार्मोन ट्रीटमेंट पे हैं, या जो फीमेल्स हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रही हैं मीनोपॉज के बाद सुंदर दिखने के लिए या मीनोपॉजल सिम्टम्स के लिए, उनकी भी एंडोमेट्रियल लाइनिंग थिक हो सकती है। और वो अल्ट्रासाउंड, एक सिंपल अल्ट्रासाउंड का टेस्ट है जो आपकी एंडोमेट्रियल थिकनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। तो अगर आपकी एंडोमेट्रियल थिकनेस 8 मिलीमीटर से ज़्यादा है मेनोपॉज होने के बाद, वो गायनेकोलॉजिस्ट आपको बेस्ट बता सकती हैं कि कितनी थिकनेस पे आपको जाना चाहिए। तो अगर आपका एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया है तो उसको फर्दर टेस्ट कराना जरूरी है। और ये एंडोमेट्रियल कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, ये एक ऐसे, या पेल्विक कैंसर एक ऐसे कैंसर्स हैं जिनमें सीटी स्कैन की बजाय एमआरआई आपकी एंडोमेट्रियल थिकनेस को ज़्यादा अच्छे से बता सकता है। तो आप, जैसे डॉक्टर सारिका ने बोला, सीधा जाके हिस्टेक्टमी मत कराइए, आप एक प्रॉपर एमआरआई कराइए, स्टेजिंग कराइए कि आपका ट्यूमर कौन सी स्टेज में है, और उसके और गो टू अ गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट या जो कैंसर सर्जन्स जो स्पेशलाइज्ड हैं, जो सालों से सिर्फ यही कैंसर सर्जरीज कर रहे हैं, प्लीज़ सिर्फ उन्हीं से जाके ये सर्जरी कराइए, ना कि अपने रूटीन गायनेकोलॉजिस्ट से। अगर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट कैंसर सर्जरीज में एक्सपर्ट हैं, प्लीज़ जाइए उनके पास। बट दिस सर्जरी इज, ये एक ऐसी सर्जरी है जो कि एक्सपर्ट के हाथों में ही आपको जीवन दान प्रदान कर सकती है। क्योंकि अगर आपकी सर्जरी एडिक्वेट नहीं हुई है, कंप्लीट क्लियरेंस नहीं हुआ है, मार्जिन आपके पॉजिटिव रह गए, लिम्फ नोड्स आपके निकले ही नहीं, और स्टेजिंग आपकी हुई नहीं, सैंपल आपका फेंक दिया गया या बायोप्सी उसके आपने कलेक्ट नहीं करी, तो ये क्योरेबल कैंसर्स भी एडवांस स्टेज में आते हैं, जिसमें
हमें रेडिएशन अगर अर्ली स्टेज में है तो देना पड़ेगा. अगर आपका अर्ली स्टेज में है तो सिर्फ ब्रेकीथेरेपी, जिसको इंटरनल रेडिएशन बोलते हैं, वो 3 या 5 सिटिंग्स का ट्रीटमेंट होता है. वो बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है, 10 मिनट का ट्रीटमेंट है, उससे आप ठीक हो सकती हैं. बट अगर आप एडवांस सिम्टम्स इग्नोर करेंगे तो आपको सर्जरी, एक्सटर्नल रेडिएशन, इंटरनल रेडिएशन, कीमोथेरेपी सब कुछ कराना पड़ेगा. डॉक्टर सारिका, एक ये बात बताइए कि आजकल मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि स्मोकिंग करती हैं और अल्कोहल भी लेती हैं, और ओबेसिटी का हम लोग जानते हैं कि मोटापे का सीधा साधा रिलेशनशिप है विद ब्रेस्ट कैंसर, विद एंडोमेट्रियल कैंसर, विद ओवेरियन कैंसर. और स्मोकिंग का रिलेशनशिप है प्रोस्टेट कैंसर के साथ भी, जो हम कभी सोचते नहीं. स्मोकिंग को हम सिर्फ हेड एंड नेक कैंसर्स और और लंग कैंसर के साथ एसोसिएट करते हैं. सो बहुत फीमेल्स मेरे पास हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए, रेडिएशन के लिए मेरे पास आ रही हैं, और वो मुझसे पूछती हैं कि मैम क्या हम रेड वाइन ले सकते हैं, मैम कैन वी स्मोक. सो what is your take on red wine specifically, red meat, and smoking for males and females who जो हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनके लिए? और देखिए, स्मोकिंग के लिए तो उसकी वार्निंग उसके पैकेट पे ही लिखी होती है कि आपको वैसे अगर आप हेल्दी है तो ही नहीं लेना है, और अगर आपको कैंसर हो गया है उसके बाद तो आपको बिल्कुल लेना ही नहीं है, क्योंकि इस चीज से ही आपका रिस्क बढ़ता है. स्मोकिंग से जो कार्सिनोजेंस होते हैं जिसके अंदर, उसी से आपका कैंसर का रिस्क बढ़ा है, और बाद में रिकरेंस का रिस्क भी बढ़ जाएगा अगर आप स्मोकिंग करती रहेंगी. और अल्कोहल भी कई कैंसर्स में, जैसे इन्होंने बताया है, वह कॉजेटिव एजेंट है. और रेड वाइन के लिए जैसे बात कही जाती है कि वो मॉडरेशन में ले लीजिए, या एक कप, एक आप, मुझे तो उसके बारे में पता नहीं कि क्या उसकी वो है कि आप एक सर्विंग ले लीजिए उसकी. पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, किसी भी चीज के लिए अगर आपको एडिक्शन हो रहा है और आपकी वेलबींग ही उस पर डिपेंडेंट है, तो उस चीज का एडिक्शन ठीक करेंगे, चाहे वो कैफीन ही क्यों ना हो. तो जिस चीज को आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ नहीं चल सकती, उसको धीरे धीरे करके आपको कम करना चाहिए. डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए कि रेड वाइन लेनी मेरे लिए जरूरी है. कभी ना कभी आप कभी कभी ऑकेजनली ले सकते हैं. और रेड मीट के लिए मैं कहूंगी कि उसको अभी कम करना चाहिए, क्योंकि रेड मीट से का भी रिलेशनशिप ब्रेस्ट और ओवरी कैंसर से है, और भी दूसरे कैंसरों से है. तो रेड मीट का सेवन, और प्रोसेस्ड रेड मीट का या प्रिजर्व रेड मीट का सेवन नहीं करना चाहिए. सो स्मोकिंग से 16-17 जगह का बॉडी में कैंसर होता है. इनफैक्ट स्मोकिंग से सिर्फ कैंसर ही नहीं होते, उसकी वजह से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. इनफर्टिलिटी का रिस्क बढ़ जाता है जो फीमेल स्मोक करती हैं. लो बर्थ वेट बेबीज़ का रिस्क बढ़ जाता है. तो बहुत लोग उनके बेबीज वो नहीं होते, गैंग्रीन हो सकता है, आपका एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है. और लोग ये समझते नहीं है, बट अल्कोहल से 3.5% कैंसर्स होते हैं. इनफैक्ट 7 जगह का बॉडी में कैंसर अल्कोहल की वजह से होता है. तो जितने भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं या जो महिलाएं आती हैं जो अल्कोहल लेती हैं, उनका लिवर कैंसर्स का रिस्क बढ़ जाता है, माउथ कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, और कोलोन कैंसर का भी रिस्क बढ़ता है. तो हम लोग ये सोच के चलते हैं कि अल्कोहल से कुछ नहीं होगा, अल्कोहल इज सेफ. सो अल्कोहल से आपका लिवर डैमेज होता है. दूसरी बात यह है कि 7 जगह का बॉडी में आपका सीधा सीधा अल्कोहल के इंटेक से कैंसर बढ़ जाता है. सो प्रेफरेबली हम तो यही कहेंगे कि स्मोकिंग मत करिए, रेड वाइन भी ना लें, रेड मीट भी अवॉइड करें तो बहुत ही अच्छी बात है. क्योंकि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप सुसाइड स्टिक अपनी जेब में लेके घूम रहे हैं. सो इफ़ यू वांट टू, आई कॉल इट एज अ स्लो पॉइजन, जो कि मतलब आप अपनी मौत का सामान खुद जेब में लेके घूम रहे हैं. और आई से कि टोबैको इज द ओनली प्रोडक्ट विच किल्स इट्स मोस्ट फेवरेट कस्टमर. जो जितना ज़्यादा पीता है उसका उतना ज़्यादा नुकसान होता है, और उससे सिर्फ आपका नुकसान नहीं हो रहा, आपके और परिवार में भी हो रहा है. और सो ये महिलाओं ना, के लिए भी स्मोकिंग उतना ही हानिकारक है जितना कि मेल्स के लिए तो है ही. डॉक्टर सारिका. ये इतना ज्यादा, मुझे तो लगता है कि एक एडिक्शन ही इतना बड़ा है कि लोगों को कैंसर हो जाने के बाद भी वो कंटिन्यू रखते हैं. तो ये कितनी बुरी चीज है, आप समझिए कि अपनी लाइफ को खुद ही इंसान मार रहा है. तो ये इतनी खराब चीज है, इसलिए किसी को भी नहीं लेना चाहिए, थोड़ा भी नहीं लेना चाहिए. क्योंकि अगर आप शुरुआत भी करते हैं, अल्कोहल थोड़ी भी लेते हैं ना, तो उससे आपको आगे, मुझे लगता है कि नुकसान ही होगा. आप उसको पसंद करने लग जाएंगे, लाइकिंग हो जाएगी, और फिर उसके बाद में आप वही विशियस साइकिल में आ जाएंगे. तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो साथ में अल्कोहल मोस्टली लेते हैं, और आप हम्म. शुरू करते हैं कि जस्ट फॉर ट्रायल, फिर उसका कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. फिर जब आप स्मोकिंग के साथ अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल के साथ में फिर आप थोड़ा मूंगफली चिप्स और मतलब ऑयली हाँ चीज़ें भी हाँ. लेते हैं, तो वो इट लीड्स टू ओबेसिटी.
और फिर वो कंट्रोल नहीं रहता है। दूसरा ये है कि आपका स्ट्रेस लेवल्स बॉडी में बढ़ते हैं, तो आपकी और बहुत सारी चीज़ों का भी रिस्क बढ़ जाता है। सो अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग ओवेरियन कैंसर्स या अंडे दानी का कैंसर। सो मैं यहाँ पे आई थिंक आप लोग भी एग्री करोगे, बहुत सारी फीमेल्स हमारे पास आती हैं जो कहती हैं जी हम तो कल तक बिल्कुल ठीक थे, अब हमारी बीमारी 4th स्टेज में क्यों हो गई। और ये सिर्फ हम फीमेल कैंसर्स में नहीं देखते, हम लंग कैंसर में भी देखते हैं, हम गॉल ब्लैडर कैंसर्स में भी देखते हैं। सो हम सबको ये एडवाइस करते हैं कि 40 इयर्स के बाद साल में अगर आप पूरे पेट का एक अल्ट्रासाउंड करा लें तो आपकी लिवर के बारे में पता चल जाएगा, गॉल ब्लैडर के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि गॉल ब्लैडर की पथरी से पित्त की थैली का कैंसर हो जाता है। बहुत सारी फीमेल्स हैं जो कि उत्तराखंड बेल्ट में, बिहार के बेल्ट में, जहाँ पे गॉल ब्लैडर कैंसर बहुत कॉमन होता है, तो और महिलाओं में ये थोड़ा ज़्यादा कॉमन है, तो इसको भी इग्नोर ना करें तो बहुत ज़रूरी होगा। तो अगर आप 40 इयर्स के बाद साल में एक बार भी अल्ट्रासाउंड पूरे पेट का करती हैं तो आपके लिवर, आपका गॉल ब्लैडर, कोई किडनी में पथरी तो नहीं है, कोई यूरेटर में पथरी तो नहीं है, कोई पित्त की थैली में ट्यूमर तो नहीं है, कोई यूट्रस में ट्यूमर तो नहीं है, कोई अंडे दानी में गांठ तो नहीं है, इस तरह की रेक्टम की ग्रोथ्स और बहुत अपेंडिक्स, ऐसी बहुत सारी नॉर्मल चीज़ें भी पता चलती हैं। सो इसके बावजूद भी जब हम एक सिंपल अल्ट्रासाउंड से हम इतने सारे कैंसर्स को पता लगा पाते हैं, तो भी डॉक्टर चंद्रानी हमारे पास फीमेल्स 20-20 सेंटीमीटर के ओवेरियन लंप के साथ, दोनों तरफ ओवरी में अंडेदानी में गांठों के साथ, पेट में पानी के साथ, मेंटल डिपॉजिट्स के साथ आती हैं। सो आपको क्या लगता है कि क्यों, क्या कोई ओवेरियन कैंसर के ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे हम उसको पहले पकड़ सकते हैं? क्या कोई ऐसे टेस्ट हैं जो हम करा लें तो हम ओवेरियन कैंसर से बच सकें? तो ओवेरियन कैंसर में सर्विक्स या ब्रेस्ट के जैसा कुछ स्पेसिफिक सिम्टम दिखाई पहले नहीं देता है। क्या होता है, कभी कभी पेशेंट्स को इरेगुलर साइकिल्स होता है, या पेट में दर्द होता है, या लगता है कि पेट पेट फूल गए, तो लोग सोचते हैं कि फैट बढ़ गया है। वो नहीं हो सकता है कि वहाँ पे कुछ ओवेरी ओवरी बढ़ गया है, या पानी जम रहा है इसलिए। तो ऐसे ऐसे सिम्टम्स, या खाने में तकलीफ होता है, सांस फूलता है, वेट कम हो जाता है, तो ओवरी का सिम्टम्स थोड़ा डिफरेंट है, वो स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन अगर ये सब सिम्टम हो तो डॉक्टर के पास डेफिनेटली जाना है। दूसरा चीज है कि अगर ये जो अल्ट्रासाउंड हम बोलते हैं कि अगर अल्ट्रासाउंड कर ले आफ्टर एज ऑफ 40 तो वो बहुत अच्छा होता है एवरी ईयर। उसके साथ और एक है ब्लड टेस्ट कॉल्ड CA-125 जो ओवरी का मार्कर है। वो मार्कर भी कुछ ओवरी का कैंसर में तो डेफिनेटली बढ़ता है, तो वो मार्कर भी अगर ईयरली फॉलोअप हो तो ओवरी कैंसर अर्ली डिटेक्शन हो सकता है। नहीं तो ओवरी कैंसर इज डिफिकल्ट टू डायग्नोज अर्ली, क्योंकि सिम्टम्स वैसे नहीं होते हैं। तो जब भी पेशेंट प्रेजेंट करते हैं तभी स्टेज 3 या स्टेज 4 में चला जाता है, तो ट्रीटमेंट भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो जैसे डॉक्टर चंद्रानी आपने बताया कि इसके कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते, बहुत बार फीमेल सिर्फ एसिडिटी हो रही है, ये एक बड़ा कॉमन सिम्टम हम लोग या देखते हैं। खाना देखते ही खाने का मन नहीं करता, पेट फूल जाता है, खाने को देखने की इच्छा नहीं होती, तो पेट में पानी बढ़ता है, वजन उसकी वजह से बढ़ता है, बट एक्चुअली में आपकी बॉडी वीक बनता है। होती है। हाँ। सो आपने बात करी CA-125 के बारे में। डॉक्टर सारिका, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे प्रोस्टेट कैंसर के लिए हमारे पास एक मार्कर है जिसको सीरम PSA बोलते हैं, तो वो अगर 4 के ऊपर बढ़ा हुआ है, 50 साल की उम्र के बाद अगर मेल्स करा रहे हैं तो हम प्रोस्टेट कैंसर को पकड़ सकते हैं, एंड इट्स अ वेरी वेरी स्पेसिफिक मार्कर फॉर प्रोस्टेट कैंसर। आपको क्या लगता है कि CA-125 कैन इट बी यूज एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट, या ये नॉन स्पेसिफिक कंडीशंस जैसे एंडोमेट्रियोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, उसमें भी CA-125 बढ़ सकता है, तो इसकी वैल्यू एज अ डायग्नोस्टिक मार्कर कितनी है और एज अ प्रोग्नोस्टिक मार्कर कितनी है, मतलब फॉलो अप में इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, ये बताइए। हाँ, तो CA-125 जो है वो हम किसी भी एसिम्टोमेटिक और एवरेज रिस्क वुमन के लिए CA-125 ओवरी कैंसर की स्क्रीनिंग में नहीं आता। और इसीलिए इसलिए क्यों नहीं आता, क्योंकि एक तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में अगर कोई फीमेल कराएगी तो कई बार उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है ये, कई बार उसकी एंडोमेट्रियोसिस या कोई भी बेनाइन डिजीज जिसमें फाइब्रॉइड भी हो सकता है उससे रिलेटेड हो सकता है, कोई लिवर डिजीज है उससे रिलेटेड हो सकता है। तो ये CA-125 मैंने हजारों में देखे हैं जिनका सिर्फ टॉपिक रप्चर हो रखी है। तो ये बहुत सारी चीजों में बहुत ज्यादा होता है। ये तो आपके जो डॉक्टर है उसको डिसाइड करना होता है
कि ये जो उसके साथ एसोसिएटेड सिस्ट है वो कैंसर है कि नहीं, जिसके अंदर और भी चीजें आती हैं, जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड को देखने के बाद बहुत सारी सॉलिड एरिया वगैरह और दूसरी चीजें देखने के बाद वो बता सकते हैं कि क्या इसमें रिस्क क्या है, क्या ये मॉडरेट है, लो रिस्क है या हाई रिस्क सस्पिशियस फॉर मैलिग्नेंसी है। और CA-125 काफी कुछ बता सकता है। अगर मुझे अंदर अगर अल्ट्रासाउंड में सस्पिशियस है और CA-125 भी ज्यादा है तो हमें काफी कुछ चीजें पता चल सकती हैं। और जो लोगों में कैंसर जब पकड़ आया था तब CA-125 ज्यादा था, तो कैंसर का ट्रीटमेंट होते होते वो कम होना शुरू हो जाता है। तो हमें पता चलता है कि जो हमारा ट्रीटमेंट है वो काम कर रहा है। और अगर बिल्कुल कम हो जाने के बाद अगर वो दोबारा बढ़ता है तो ये पता चल जाता है कि रिकरेंस हो रहा है या होने वाला है। पर 50%, मैं ये कहूंगी 50% ओवरी कैंसर में कई बार CA-125 हाई नहीं होता है। बिल्कुल। कितना इम्पोर्टेंट बात है कि CA-125 इज कैन हेल्प यू इन कंफर्मिंग के, मतलब अगर आपका ऑलरेडी ओवेरियन कैंसर डायग्नोस्ड है या आपका बढ़ा हुआ है, और खासतौर से एल्डरली फीमेल्स में CA-125 इज मोर ऑफ अ डायग्नोस्टिक मार्कर। यंग पेशेंट्स के लिए उतना ये स्पेसिफिक नहीं होता। तो अगर आपका बढ़ा हुआ है तो मॉनिटरिंग में आपको ये जरूर हेल्प करता है कि आपकी कीमोथेरेपी आपको रिस्पॉन्ड आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या आप ऑफ ट्रीटमेंट हो गए हो और फिर से CA-125 बढ़ने लग जाए, तो हमें ये इशारा दे देता है कि बीमारी वापस आ रही है। बट हम लोग ये देखते हैं कि ओवेरियन कैंसर की दो पीक्स हैं। ये यंग एज में भी बहुत कॉमनली देखा जाता है, और ज़्यादातर केसेस में हम एल्डरली पेशेंट्स में देखते हैं जिसमें CA-125 की सिग्निफिकेंस है। बट बहुत यंग फीमेल्स होती हैं जो 20 से 30 साल की उम्र की बच्चियां हैं, उनमें डिसजर्मिनोमस होते हैं या जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं, वो भी ओवेरियन कैंसर होता है, और वो शायद उतना खराब नहीं होता जितने कि एपिथेलियल कैंसर्स होते हैं जो ओल्ड एज वाले होते हैं। सो डॉक्टर चंद्रानी, आप कितना कॉमनली यंग फीमेल्स में देखते हो? कई बार डर्मोइड सिस्ट करके फीमेल्स आती हैं, तो लोग कई बार बहुत यंग फीमेल्स में होता है जिसमें आपको यूट्रस रिमूव करना पड़ता है या फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन सर्जरीज होती हैं। सो ये जो यंग फीमेल्स में ओवेरियन कैंसर होता है उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। और उस यंग फीमेल ओवेरियन कैंसर होता है वो एल्डरली, हाँ बोलिए। नहीं, आप बताइए। वो थोड़ा डिफरेंट होता है कि हाँ, जो एल्डरली फीमेल्स में होता है उनमें जो एपिथेलियल टाइप का कैंसर होता है, यंग में उसका इंसिडेंस थोड़ा कम होता है। उन यंग्स में जो होता है उनको बोलते हैं कि मोस्टली जर्म सेल ट्यूमर। तो जर्म सेल या डिफरेंट ग्रैन्युलोसा सेल, वो डिफरेंट टाइप का ट्यूमर होता है यंग्स में ओवरी में। तो उसका भी लाइक ट्रीटमेंट और मार्कर सब फ्रॉम द लाइक द ओल्ड फीमेल्स बहुत डिफरेंट होता है। तो ट्रीटमेंट भी और कीमोथेरेपी का टाइप भी, सर्जरी का टाइप, एवरीथिंग इज क्वाइट डिफरेंट कंपेयर्ड टू द एल्डरली पॉपुलेशन। तो हम अभी तक जो देखे हैं, वी हैव सीन यंग फीमेल्स प्रेजेंट विद कैंसर, लेकिन फिर भी इंडिया में एंड इवन इन अब्रॉड आई हैव सीन मोर ऑफ एल्डरली पेशेंट्स विद ओवेरियन कैंसर कंपेयर टू द यंगर वंस। और यंगर वंस में जब होते हैं बिलो 40 इयर्स, तो जर्म सेल का ज्यादा हमने देखा है कंपेयर टू द अदर सेरस और एपिथेलियल वंस जो एल्डरली पॉपुलेशन में देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो यंग पेशेंट्स में कैंसर होता है 20 to 30 इयर्स की एज ग्रुप में, वो जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं जो कि क्योरेटिव होते हैं, और जो एल्डरली पेशेंट्स में होता है वो कंपैरेटिवली अर्ली स्टेज में वो भी क्योरेटिव होते हैं, बट ऑफकोर्स एडवांस स्टेज में उतना क्योरेट हमको नहीं मिल पाता है। डॉक्टर सारिका, आपको क्या लगता है कि जो जर्म सेल ट्यूमर्स हैं या जो यंग लोगों में, यंग गर्ल्स में हैं, उनकी सर्जरी और एडल्ट पेशेंट्स की सर्जरी में कुछ डिफरेंट होता है? जब आप यंग पेशेंट्स की सर्जरी करती हैं तो डू यू डिस्कस फर्टिलिटी इश्यूज? बिकॉज बहुत बार अनमैरिड फीमेल्स आती हैं, अनमैरिड लड़कियां होती हैं, और पेरेंट्स बहुत बेचारे अपसेट हो जाते हैं कि इसका यूट्रस रिमूव हो जाएगा, इसकी ओवरी रिमूव हो जाएगी, हम अब इसकी शादी कैसे करेंगे? ये एक बहुत कॉमन इशू है, एंड हमारे पास ओपीडी में पेशेंट्स आते रहते हैं, और पेरेंट्स और बच्ची भी ऑफकोर्स बहुत अपसेट होती है। सो हालांकि हम जानते हैं कि वो क्योरेटिव होते हैं, वो कैंसर्स क्योर हो जाते हैं, तो यंग कैंसर्स के बारे में क्या डिफरेंस है सर्जिकल एस्पेक्ट पे और फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन एस्पेक्ट पे, उस बारे में आप बताइए। जो यंग पेशेंट्स होते हैं, देखिए लड़कियों में भी हो सकता है। मैं तो ये कहूंगी कि 12 वर्ष के बाद भी, कई लड़कियों को प्यूबर्टी के बाद में भी ओवरी के कैंसर हो सकते हैं। पर ये ज्यादातर कैंसर जैसे बताया गया है जर्म सेल ट्यूमर होते हैं और इनकी सर्जरी रेडिकल कम होती है।
ज्यादातर केसेस में इसमें हम अगर डेमोइड या इस तरह की चीज है तो हम सिर्फ सिस्टेक्टमी कर सकते हैं। अदरवाइज उस साइड की ट्यूब और ओवरी निकाली जाती है और यूट्रस को और दूसरे साइड की ओवरी को छोड़ दिया जाता है, जिससे कि उसकी शादी में प्रेगनेंसी में दिक्कत नहीं आती है। अगर वो एडवांस्ड कैंसर है और अगर हमने लिम्फ नोड में आ गया है या बहुत बड़ा साइज है या उसकी एग्रेसिवनेस ज्यादा है, तो कभी कभी कीमोथेरेपी भी देनी पड़ती है बच्चे को। पर उसके बाद में क्योर रेट काफी अच्छे होते हैं और इसीलिए उनकी सर्जरी बिल्कुल अलग होती है। और कई बार उनको ये भी बताया जाता है, अगर समझ लीजिए कि एडवांस कैंसर है और उनकी दोनों ओवरी निकालनी है, तो कभी कभी उसकी क्रायो प्रिजर्वेशन वगैरह करने की भी हम बताते हैं। उसमें 21 दिन के करीब लगते हैं और सर्जरी को 21 दिन डिले कर दिया जाता है और एग्स को रिट्रीव कर लिया जाता है दूसरी ओवरी से। तो ये सब चीजें भी की जाती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि एक साइड की ओवरी को निकाला जाता है, सिर्फ सिर्फ जो छोटे बच्चे होते हैं। और I think ज्यादातर एपिथेलियल कैंसर में अगर स्टेज 1A से ज्यादा है तो यूट्रस और ओवरी दोनों ही ओवरी निकाली जाती हैं। बहुत but मुझे लग रहा है वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो दो चार क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। एक पुष्पा जी ने पूछा है डॉक्टर सारिका कि क्या मेस्टेक्टमी के बाद, सर्जरी के बाद में ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कितने टाइम गैप के बाद किया जा सकता है? सर्जरी करने के बाद मैं कहूंगी कि हम 1 साल तो फिर देखिए कि क्या उसकी कंडीशन चल रही है और रिकरेंस वगैरह क्या है, उसके बाद में हम रिकंस्ट्रक्शन के बारे में सोच सकते हैं। डॉक्टर डॉक्टर चंद्रानी, एक इन्होंने बोला है कि सुष्मिता जी पूछ रही हैं कि मेरी राइट आर्मपिट में एक लंप है, मैंने मैमोग्राफी कराई है, लोकल डॉक्टर को दिखाया है, उन्होंने बोला है कि एडिशनल ब्रेस्ट टिश्यू है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप भी ऐसा सोचती हैं कि उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, अगर अगर उनमें कोई लंप हो, आई थिंक शी नीड्स अ बायोप्सी टू चेक एक्चुअली, रादर देन थिंकिंग कि एडिशनल टिश्यू है, पहले कंफर्म होना चाहिए। हाँ, सो मतलब डॉक्टर को ठीक है, दिखा के सलाह लें। क्योंकि सुपरन्यूमरी ब्रेस्ट वो, हाँ हाँ, सर्जन के पास जाना होता है, शुड बी चेक बाय सर्जन डेफिनेटली। कभी कभी एक्सिलरी टेल में भी हो सकता है कोई ट्यूमर, जो कि एक्सिलरी हाँ, टेल जो हमारा हो सकता issue है, है, हाँ। तो इसलिए बेटर है कि डॉक्टर के पास जरूर जाएं और बायोप्सी जरूर कराएं। एक सवाल पूछ रही हैं, कविता जी पूछ रही हैं कि हम्म। रेडिएशन में दर्द होता है क्या, नहीं कराएं तो क्या होगा? रेडिएशन कम्प्लीटली पेनलेस ट्रीटमेंट है, ये एक्सरे बेस्ड ट्रीटमेंट है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेडिएशन की टेक्निक्स बहुत एडवांस्ड हैं। रेडिएशन से जिस हिस्से में आप रेडिएशन दे रहे हैं सिर्फ वहीं पर साइड इफेक्ट होते हैं। मतलब अगर आप मान लीजिए ब्रेन में आप रेडिएशन कर रहे हैं तो सिर्फ उस हिस्से के, वो भी थोड़े से हिस्से का हेयर लॉस होगा, पूरे सिर का बाल नहीं जाएंगे। अगर आप पेट में रेडिएशन करा रहे हैं तो आपको भूख कम लग सकती है, बट अगर आप ब्रेस्ट में रेडिएशन करा रहे हैं तो आपको कोई भूख कम होने का कोई मतलब नहीं होता। अगर नहीं कराएं तो क्या होगा, तो डेफिनेटली अगर आपका इंडिकेटेड है रेडिएशन और आप नहीं कराती हैं तो आपके कैंसर के वापस आने का खतरा बना रहेगा और वो कैंसर आपका जल्दी वापस आ सकता है। और अगर लोकल एरिया में कैंसर वापस आता है तो वो शरीर के किसी भी और हिस्से में भी वापस आ सकता है। जो ट्रीटमेंट एडवाइज्ड है किसी भी कैंसर पेशेंट को, चाहे वो सर्जरी है, चाहे वो कीमोथेरेपी है, चाहे वो रेडिएशन है, हार्मोन थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, जो भी ट्रीटमेंट एडवाइजेबल है उसको पूरे ढंग से कराएं। आप हाफ हार्टेड ट्रीटमेंट करेंगे तो हाफ हार्टेड रिजल्ट से मिलेंगे। सो लास्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ। जैसिला जी पूछ रही हैं कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव यूज से क्या कैंसर होता है कि नहीं, और साथ ही दूसरा सवाल भी मैं साथ ही रख रही हूँ डॉक्टर सारिका कि पेट स्कैन का कॉस्ट कितना है, क्या गायनेकोलॉजिस्ट पेट स्कैन कर सकती हैं? तो ये पहला क्वेश्चन क्या था कि कि लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव से कॉन्ट्रासेप्टिव, कैंसर देखिए हो सकता है? ओसीपी जो है, अगर आप ओरल की बात कर रही हैं तो लॉन्ग टर्म लेने से ओवरी कैंसर का रिस्क तो कम होता है, पर उससे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो और उससे एक दो चीजें रिस्क बढ़ जाते हैं, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का, जो क्लॉटिंग का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप स्मोकिंग कर रही हैं, स्पेसिफिकली अगर आपको स्मोकिंग कर रही हैं या अगर आपको कोई लिवर का इशू है, तो उससे वो चीजें उसमें उन लोगों में ये प्रॉब्लम कर सकती है। पर अगर आप एक नॉर्मल फीमेल है, आप मेमोग्राफी करा रही हैं, अपनी रूटीन चेकअप करा रही हैं, तो आपको इस चीज से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो रिस्क है ओसीपी से ब्रेस्ट कैंसर का, वो काफी कम होता है, काफी कम ही बढ़ता है। इनका दूसरा सवाल था पेट स्कैन का।
पेट स्कैन तो देखिए हर जगह अपना अलग है। अगर आप इंद्रप्रस्थ अपोलो में पेट स्कैन कराएंगी वो अलग है, आप एक छोटी सी दुकान से कराएंगी उससे अलग है। क्यों क्यों अलग है? क्योंकि मशीन की क्वालिटी भी अलग होती है। कितनी हाई डेफिनेशन, आप समझ लीजिए एक स्टैंडर्ड टेलीविजन और एक हाई डेफिनेशन टेलीविजन में जो पिक्चर क्वालिटी का फर्क होता है, वो फर्क होता है, मशीन पे डिपेंड करता है। और जो डॉक्टर जितने एक्सपर्ट बैठाएंगे उतना ही उसकी कॉस्ट भी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी अगर बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन, आप सबसे अच्छे इंस्टीट्यूशन से करा रही हैं, तो 25-30 हजार तो खर्चा होगा आपका। उसके अलावा वो आपको 10 हजार से शुरू हो सकता है, 7-8 हजार से भी शुरू हो सकता है अगर आप छोटी शहर में रहती हैं। तो यहाँ से शुरू होके वो 25-30 हजार तक जा सकता है, डिपेंडिंग आप किस जगह करा रही है, वो किस कैसा इंस्टीट्यूट है। और कई जगह फ्री भी है, जैसे कि आप एम्स में कराएं फ्री है, और कई जगह फ्री है। सो गायनेकोलॉजिस्ट पेट स्कैन एडवाइस कर सकती है, गायनेकोलॉजिस्ट पेट स्कैन करती नहीं है, उसके लिए स्पेशल न्यूक्लियर मेडिसिन स्पेशलिस्ट होते हैं। हाँ जिस जी। तरह से मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, मैं रेडिएशन के एक्सपर्ट हूँ, डॉक्टर सारिका सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, वो सर्जरी के एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर चंद्रानी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, वो कीमोथेरेपी में उनके मुकाबले का कोई नहीं है। तो इसी तरह से न्यूक्लियर मेडिसिन स्पेशलिस्ट होते हैं जो एक पेट स्कैन की रिपोर्ट बनाते हैं। सो आप कैंसर ट्रीटमेंट में स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितने एक्सपर्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराएंगे उतने अच्छे आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। सो यहाँ पे हम अब मैं आप सबका सबसे पहले मैं onco.com का धन्यवाद देना चाहूँगी, और जितने भी व्यूअर्स और लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हैं और जिन्होंने मैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, बिकॉज अगर आप यहाँ जुड़े हैं और आप हमें सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आप हेल्थ कॉन्शियस हैं। इट मीन्स you have taken your first step towards recovery, you value your health. तो अगर आप अपने आप को प्यार करती हैं, आप अपने परिवार को प्यार करती हैं, तो गो फॉर अ पैप स्मीयर, डू सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, गो फॉर मैमोग्राफी, गो फॉर स्क्रीनिंग्स। अपनी मदर इन लॉज को लेके जाइए, उनके अल्ट्रासाउंड कराइए। हर हॉस्पिटल में कैंसर स्क्रीनिंग चेकअप्स हैं। अपने हस्बैंड्स का PSA का चेक कराइए। 50 साल के ऊपर कोई है तो उसका कोलोन के लिए ओकल्ट ब्लड टेस्टिंग होता है। स्किन में अपना चेकअप करिए कि कोई नेवस या कोई मोल, कोई तिल या मस्सा, कोई आकार तो नहीं बदल रहा है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो प्लीज़ लो डोज CT स्कैन कराइए। अच्छा खाइए, हेल्थ योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, ट्रीटमेंट पूरा करिए। ट्रीटमेंट के बाद अपनी एक्सरसाइजेस करते रहिए ताकि लिम्फेडिमा ना हो। और खूब पानी पीजिए, स्वस्थ रहिए, और साथ में अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि एक महिला स्वस्थ है तो हमारा नेशन स्वस्थ है। सो इसके साथ आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर सारिका। आपने बहुत बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन दी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा, एंड वी वुड लाइक टू कनेक्ट विद यू मोर। डॉक्टर चंद्रानी, इट वाज अ रियल प्लेजर टू हेयर योर एक्सपर्ट कमेंट्स। आपने इतने आसान शब्दों में इतनी कैंसर की समस्या को इतने आसान शब्दों में बहुत सिंपल बना दिया, और इतने अच्छे ढंग से आपने सब कुछ बताया। तो आप लोगों से मिलके आई थिंक हमारे व्यूअर्स को और हमारे लिसनर्स को बहुत फ़ायदा हुआ होगा। हम इस तरह के प्रोग्राम आगे भी करते रहेंगे। सो आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। मैं हूँ डॉक्टर इंदु बंसल, नारायण हॉस्पिटल गुरुग्राम से। डॉक्टर सारिका और डॉक्टर चंद्रानी का मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ। डॉक्टर सारिका हैं अपोलो हॉस्पिटल से, और डॉक्टर चंद्रानी है मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। ध्यान रखिए। शब्बा खैर।